all, I will introduce myself. Myself, Molly, a sophomore of electronics engineering and a part of skills development team SCS. I kindly request you to turn on your videos if it's possible and be interactive throughout the session by unmuting your mic or through the chats. Uh, I know it was a tiring week for you all, full of tension and stress due to the midsims. But now, since the midsims are over, so it's time to have fun and learn something new. So here it is, the Skills Winter Boot Camp by the Skill Development Team of SCS. It is an array of 101 workshops and sessions on diverse skills. These workshops are aimed to give you a brief introduction to different skills and to select a few that you may want to learn. So let me introduce you to the speakers of today's session, Vivek Arya Bhaiya and Manvi Di. Vivek Arya Bhaiya is one of the pro designers of our institute and was part of almost all the design teams of different clubs and fest. He has done various internships in product designing and is currently a product designer in Zapad's Media. And Manvidi. Manvidi is also a proficient designer and an excellent user behavior psychology expert. She has done various internships in this field. Among this, one was an intern as a product designer in Vedantu. And now she is placed in AI Dash as an APM. So now I would request Vivek Bhaiya and Manvidi to go ahead with the session. Hello everyone. This is Vivek. थोड़ा बेसिक बता देता हूँ. मैं सेरामिक से था, like last year में पास आउट हुआ हूँ. तो and currently working as a associate product designer, as Molly mentioned. So basically, we are thinking to cover the basics of the design in first, so that we build a bit of the interest of designing in you. Then after we cover the advanced topic like basics of UI UX, maybe, or maybe Figma, how we use Figma as a developer, as a designer, and as a product manager. So yeah, moving forward with the Mali. Hi everyone. So I'm Manvi. मैं अभी कॉलेज में हूँ, फोर्थ ईयर मैकेनिकल. तो it's like I was going through all of your responses. Thanks for heavily responding on that Google form जो इन लोगों ने share किया. So most of the responses ऐसे थे कि मुझे डिजाइनिंग स्क्रैच से सीखनी है, या फिर मुझे क्लब में काम करना है, या फिग्मा और कैनवा सीखना है, एंड समथिंग वर लाइक यूआई यूएक्स सीखना है जो इंटर्न में काम आए, ऐसा कुछ. ठीक है. तो इट वाज वेरी डाइवर्स फॉर अस कि मतलब सबके लिए ऐसा सेशन कैसे रख सके. तो वी आर गिविंग अ प्राइमर वर्कशॉप फॉर डिजाइन फर्स्ट, कि पहले हम डिजाइन के प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि हाउ डिजाइन वर्क्स. एंड विवेक भैया ने काफी पहले सेशंस लिए हैं, डिजाइन क्या होती है, डिजाइन में करियर्स क्या होते हैं. तो इस बूट कैम्प को स्टार्ट करने के लिए टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट सम बेसिक्स अबाउट डिजाइनिंग. एंड या, वी आर गुड टू बिगिन विद. एंड हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि ये पूरा सेशन बहुत इंटरेक्टिवली, मतलब पूरी डेक वैसे ही डिजाइन है. तो काइंडली यूज चैट और अनम्यूट योर माइक वेयर यू वांट टू आस्क समथिंग. ओके. एंड इसको थोड़ा लाइक इनफॉर्मली रखेंगे, एज सच फॉर्मली बनाएंगे. बिकॉज देखो, आई एम हियर बिकॉज मैं जो सीखा हूँ 4 साल में, एंड बिकॉज मेरा कोई मेंटर नहीं था जब मैंने स्टार्ट किया था इन माय सेकंड ईयर. सो आई वांट टू फॉरवर्ड जो भी मेरी लर्निंग थी, जितनी भी मेरी लर्निंग थी 3 ईयर की, वो तुम्हें सब दे पाऊँ. तो उसके लिए जितने ज्यादा तुम क्वेश्चन पूछोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा. एंड मोस्टली चीजें, मोस्टली टॉपिक, मोस्टली डेक मानवी कवर करेगी. आई मोस्टली कवर योर क्वेश्चंस, जो भी तुम्हारे डाउट्स होगी वो मैं कवर करूंगा. सो आई गेस एक बार एक बार थोड़ा वो देख लेते हैं, लाइक फर्स्ट ईयर से कितने, एक बार हैंड रेज कर देंगे प्लीज, थोड़ा पता लग जाए तो अच्छा रहेगा. अरे काफी नाइस. नाइस. एंड व्हाट अबाउट, ओके, स्टिल काउंटिंग. ओके, कूल. हैप्पी टू सी दैट कि इतने सारे डिजाइन में इंटरेस्टेड है. मेरे टाइम में कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, बट नाउ काफी अच्छा है. नाउ सेकंड ईयर भी एक बार इफ पॉसिबल. अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट. कूल 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 कूल. सो थोड़ा एनर्जेटिक रखेंगे, थोड़ा मजे करेंगे सेशन में. एज सच कोई क्लास नहीं ले रहे, कोई एग्जाम नहीं होगा इसका. ठीक है, जो अपनी मर्जी से सीख रहे हैं, अपने यूज के लिए सीख रहे हैं. दैट्स इट. सो आई गेस स्टार्ट करते हैं मानवी, राइट?
शुरू करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, विजिबल है क्या? विजिबल है क्या डेक? Yeah. Yes, ma'am. Okay. Okay. So this is our workshop, Introduction to Designing, Design 101. तो हम कवर कैसे करेंगे? फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अ बिट ऑफ यूएक्स। यूएक्स क्या होता है? काफी लोगों ने यूज किया था ये टर्म, तो आई वांट टू नो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। देन वी विल कवर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, और फिर प्रिंसिपल ऑफ डिजाइंस। देन आखिरी में जो भी क्वेश्चन हो डिजाइन से रिलेटेड, इस डेक से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, यू कैन आस्क एनीथिंग, राइट? एक बार नेक्स्ट सेशन के बारे में भी थोड़ा बता दो कि नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाली वर्कशॉप में हम सीख जाएंगे कि डिजाइन क्या होती है, किन एलिमेंट से बनती है, और हम उन एलिमेंट्स को कैसे कहाँ पे यूज करके काफी बेटर कॉम्पोजिशंस बना सकते हैं और कैसे ज्यादा आउटपुट डिराइव कर सकते हैं। तो आफ्टर व्हेन यू विल लर्न these principles, then we will teach you how the tool works. It's like before learning the tool, you should know what is good, what is bad, and how to make. And so the next workshop that we will be taking is mostly on introduction to Figma, that most of you guys wanted to learn what is Figma, how do you create to make designs, make products, or make posters or anything. Figma is a very multifaceted tool you can use to make variety of things, but for them the basics are very important, and today we are going to teach you this. और कुछ विवेक भैया जो कवर करने वाले No, हैं? I guess we can move. No, I guess we can move forward. ओके, ठीक है। तो कितने लोग बताओ कि वो लोग ऐसे मॉल में और रेस्टोरेंट्स में गए हैं और उन्होंने हमेशा दरवाजा गलत खोला होगा? You guys can raise your hands. Okay, I can see. Okay, nice. Quite a lot of people, right? So yeah, so this is a very common problem that you can still see after जितनी भी design develop हो गई है या कुछ भी हो गया है, but you still open the door, right? And you are always looking for a visual cue कि push कहाँ लिखा है and pull कहाँ लिखा है. So it's like ऐसी you don't need a set label on a chair to indicate that कि तुम्हें उस chair पे बैठना है, but you need push and pull on a door कि तुम उसको कैसे खोल सको. So this is one thing that is called Norman door. मतलब अगर इसको टेक्निकल टर्म में ले जाए, डॉन नॉर्मन जिसने यूएक्स टर्म को कॉइन किया था, he called these doors as Norman doors, जहाँ पे तुम्हें सोचना पड़ता है एंड तुम फिर खुद को ही गलत समझते हो कि तुमने गलत गेट खोल लिया, बट ये डिजाइनर की गलती थी. सो बेसिकली डिजाइन इस फोटो से ये था कि डिजाइन हर जगह अवेलेबल है, तुम जहाँ पे बैठे हो, तुम जो लैपटॉप यूज कर रहे हो, तुम्हारे पूरे घर में हर चीज, तुम्हारी वॉल, तुम्हारा इंटीरियर, सब कुछ, एवरीथिंग इज डिजाइन दैट यू सी अराउंड यू, राइट? तो यहाँ से हम चलते हैं कि यूएक्स क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सबने यूएक्स मेंशन किया था. इफ सम ऑफ यू कैन टेल मी कि वो यूएक्स से क्या समझते हैं. मतलब anywhere you can type in chat or unmute. मैं बताऊं प्रोडक्ट में सम काइंड ऑफ एनहांसमेंट ताकि यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो सके उनके साइड से. But what is user experience? Basically, question is this. बेसिकली शायद हम लोग क्या किसी प्रोडक्ट को हम लोग क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू हम पब्लिक का रिव्यू लेते हैं, तो शायद हम उसी को यूजर एक्सपीरियंस बोल रहे हो. तुम्हारे अकॉर्डिंग यूजर एक्सपीरियंस क्या है? अभी यू आर इन दिस मीटिंग, तुम्हारा एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक टेल मी व्हाट इज योर यूजर एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स राइट नाउ. मतलब कैसा है एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग दिस कम्युनिटी, हम लोग हैं. आई थिंक यूजर एक्सपीरियंस लाइक वो एक्सपीरियंस है जो आपको वापस प्रोडक्ट यूज करने को इंस्पायर करे. All right. Next. Interesting answer आ रहा है. It is how users interact with the product. Okay. Then what is interaction design?
All right. Cool. Any other please? Okay. तो Okay. इट्स लाइक मैं बता देती हूँ यूजर एक्सपीरियंस मेरे लिए क्या है। सो जनरली पहले एक बात बता दो सबको, इंग्लिश हिंदी चल रही है या इंग्लिश में मेन कंटेंट समझाना है एक बार? मतलब आई कैन ऑल्सो टॉक इन इंग्लिश इफ यू वांट। हेलो। For English, raise your hand. मतलब कोई भी साउथ से हो या जिसको हिंदी समझ नहीं आती हो, दे कैन टेल अस। मैं इंग्लिश में कंटिन्यू कर लूंगी या फिर दोनों में। These responses from chat suggest that we are good to go with anything. Chill. Yeah, it's written in English. You can go with both. Okay, got it. So it's like whenever we interact with something or a product, we generally create an emotional connect with that. तो वो emotion अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। And user experience is a very very broad umbrella term that refers to process जहाँ पे तुम products बनाते हो. It can be digital or physical, but they should be practical and usable. It's like तुम उनको अच्छे से यूज कर सको एंड वो प्रैक्टिकली उनकी कोई वैल्यू हो, वो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। सिंपल टर्म में, हाई लेवल भाषा में यही होता है यूजर एक्सपीरियंस। इट्स लाइक हाउ डू यू इंटरेक्ट विद प्रोडक्ट, जो किसी ने बोला था, बट इंटरेक्शन हैज अ वेरी वेरी वास्ट मीनिंग। इट refers to how you feel the product, how you see it, how is the feedback you are getting from it, what human psychological factors are coming into play. It's like if you are using Facebook, Instagram, you go back to it. So they play on your hormones. They play on dopamine. They play on oxytocin. So they also care about those human psychological factors apart from making the interface usable, aesthetic, and a lot of other things you can see under this information architecture, visual design, industrial design, in terms of physical products mostly, right? So UX is So, everywhere. Yeah. Vivek, go. so let's discuss this, or for better understanding, I will give you a small or simple example. So we all love ice cream, right? सबको आइसक्रीम पसंद होगी। रेज हैंड कर लो यार प्लीज। मैं भी ओके, करूंगी। सो अगर मैं आइसक्रीम को खारा बना दूं तो तुम्हें मजा आएगा? व्हाट इज योर आंसर? कभी नहीं आएगा, राइट? सो बेसिकली वही कि when you taste something or when you use or eat something and what you feel, तो बेसिकली वही तुम्हारा एक्सपीरियंस इज यूजर एक्सपीरियंस, राइट? अब तुम कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तुम कैसा फील कर रहे हो उसको यूज करते हुए? तुम सेटिस्फाई हो, अनसेटिस्फाई हो उसकी सर्विस से, दैट्स इज व्हाट अ यूजर एक्सपीरियंस। सो आई गेस इससे थोड़ी क्लैरिटी आई होगी व्हाट इज यूजर एक्सपीरियंस, राइट? वांट टू ऐड समथिंग मानी? हाँ, अभी आगे और मीम बने हैं UX। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। हाँ, तो ठीक है, ये सब देख लिया। तो अब तुम्हें समझ आ गया यूजर एक्सपीरियंस से विजुअल चीजें नहीं होती, काफी ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है हर चीज का। जो जो तुम फील कर रहे हो, जैसा भी किसी प्रोडक्ट के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन है, बिहेवियर है, वो सब यूजर एक्सपीरियंस में आएगा। तो see, this is a very famous meme you see. तो just like no matter how cute this cup is looking या फिर कैसा भी इसका डिजाइन है, but you can never drink from this cup, otherwise you will harm your eyes. So although this qualifies for some that it is, you can say it is good looking, maybe cute by some people, right? It also has a feedback mechanism, but it's not usable for you, right? It will hit in your eyes. So anything that is visually appealing doesn't mean that it is usable, right? Then moving ahead. So this is one website. Let's do some kind of poll. You can type it in the chat. So the scenario is you have a motorcycle and you have to list it.
list it on a website so that someone else can purchase it or rent it, right? So will you prefer this website or this website? You can use one Where is for the this poll? and second for this. Where is the poll, Manu? It's like it's not a poll. You can type it on chat, one or two. All I right. tried getting the poll, but it was not working. So who goes to first one? Raise your hand. First one is this. No one. Cool. Then this one. Okay. Nice. A lot of people, most of them are going to visit second one, right? Although one thing that I tell you that this is Craigslist. It's a very old website and it's mostly used worldwide because of number of users. Rather than this Facebook Marketplace, I raise the name so that you don't perceive it for brand value, right? So, okay. So as a user, you saw that this website is more structured. You don't have to read everything. Everything is not just text. There are visual cues and everything. Even though both websites are functional, and maybe even Craigslist have high conversion rate than Facebook Marketplace. Conversion rate here means just like you post it and you will get a seller soon or a buyer soon, right? So you can easily sell on Craigslist rather than on Facebook Marketplace. But you are tempted to use Facebook Marketplace because of the aesthetics, because of the structure, because of the hierarchy and the elements how this website is made up, right? Most of the reason is someone else has anything else to add why they picked up this one instead of Craigslist. They can tell. Someone in chat can type. Because there's not any visual thing in the second one. Like in the first, we can see the product instantaneously. Right, you have to read everything here. It's like activities, artists, childcare. It's so very taxing on your mind. It's very high load on your mind, so that you are not willing to use this, right? So this to comparison also shows you that aesthetics also play a very important role in business, in design. So even though it should be functional, both websites are functional. You can sell things there, you can sell things here too, but aesthetics also have a very 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 important role in how the users perceive your design. If there are two products, one that is medium functional, other is like a bit less functional than that. But if the less functional product has very high aesthetics, people will perceive that less functional thing is very good. That's how human psychology works. So you can never skip on Best aesthetics while designing. best Apple ki best website. example of this is Apple की website You can or Apple consider it phone very itself. luxurious and something. Also, Hmm. like one thing I want to add, like as I many times say that in my talks that aesthetics is directly proportional to the credibility. जितना अच्छा तुम्हारा वेबसाइट दिखेगा, तुम्हारी वेबसाइट या प्रोडक्ट उतना ही क्रेडिबल लगेगा, उतना ही ट्रस्ट होगा लोगों को. तो दैट्स व्हाई हम डिजाइन को बेटर रखने की कोशिश रखते हैं जिससे कि क्रेडिबिलिटी बढ़े एंड हमारे कस्टमर वापस आए. बट बैलेंस होना Carry on. चाहिए एस्थेटिक्स में और फंक्शनल में भी. ऐसा नहीं कि एस्थेटिक बना देना है और फिर वो चल नहीं रही है तो कोई फायदा नहीं होता उसका. ठीक है, मतलब सेम गोज फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू सी. ठीक है, ओके. सो वी आर डन विद सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो अब हमें थोड़ा बहुत विजुअल एलिमेंट्स का थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि वो क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं. तो सो वी आर मूविंग अहेड to what most awaited topic of this talk is elements of design. Okay, so design elements have an impact how your piece of work is perceived, executed and used by other people's, right? So कैसे कैसे लोग तुम्हारा वो काम देखेंगे,
कैसे तुमने वो यूज किया है. आर्ट इज समथिंग जो हर इंसान अलग अलग परसीव करता है, बट डिजाइन इज समथिंग दैट यू डिजाइन कंसिडरिंग समवन एल्स की साइकोलॉजी, की वो जब यूज करेगा तो वो इसी वे में यूज करेगा. राइट अगर तुम कोई साइन अप बटन बनाते हो, अब तुम नहीं चाहोगे सामने वाले को उसको लगे कि वो लॉग इन बटन है या वो डाउनलोड की बटन है. राइट तो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन इज समथिंग दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डीकंस्ट्रक्ट एनी कॉम्पोजिशन यू सी. राइट एंड अ गुड डिजाइनर शुड हैव सॉलिड फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग कि कौन से एलिमेंट्स यूज करने हैं, कहाँ पे यूज करने हैं एंड कब यूज करने हैं. तो टोटल 6 एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आज हम डिस्कस करेंगे. इससे थोड़े और ज्यादा भी हो सकते हैं, बट ये 6 आर मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो फर्स्ट वन इज शेप. शेप इसलिए नाम से समझ आ रहा होगा, एक 2D एरिया है जिसके जो एक आउटलाइन जिसके अराउंड एक आउटलाइन है. हम बहुत सारी शेप्स को कंबाइन करके काफी अच्छी इलस्ट्रेशंस और आइकन्स बना सकते हैं. तो जनरली इन नेचर जब तुम देखोगे तो देयर आर 3 टाइप ऑफ शेप्स. ऑर्गेनिक मतलब जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहती है, जैसे स्टोन की शेप हो गई, लीफ की शेप हो गई, पेबल्स हो गए. ज्योमेट्रिक जो कि एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ये सब फॉलो करते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया. सो दे हैव स्पेसिफाइड एंगल्स एंड डायमेंशंस. जब उनको यूज करोगे तभी वो शेप बनेगी. एंड एब्स्ट्रैक्ट शेप मतलब these are kind of shape that try to represent how can I say, मतलब एक परफेक्ट शेप के लिए उसका एक इलस्ट्रेशन टाइप होता है. जैसे लाइक आइकन्स होते हैं, यू सी होम आइकन इज जस्ट लाइक इन इंस्टाग्राम यू कैन से होम आइकन इज लाइक अ हट, राइट, but it gives you an idea that this will take you to the home, and those are called abstract shapes. Right. So can you guys tell me how is this picture made of, what elements are used in this picture? Geometric. With geometry. Triangles. Right. Right. So yeah, Poly this is polygons maybe. no. So Yeah. this whole triangle is also a polygon. So okay. So this whole imagery is made up of just using triangles, different colors, different tones, hues, and contrast are used to make this whole picture. So you can see a small triangle shape can result into a such beautiful imagery if correctly used, right? And yeah, so and this is how shapes are used by companies, by using by the brand managers who keep track of the brandings and the logos. So this is the most famous Twitter logo you can see, right? So this sorry, yeah, so this logo is just made by overlapping 15 circles on top of another, right? Okay, so if shapes are generally shapes also have some type of psychology inside them. So when the Twitter designer was designing this logo, he said that circle symbolizes that Twitter has that the idea that Twitter is giving forward is that it democratizes information and gives everyone a voice. So this whole circle is used because it represents a certain notion, it represents a certain feeling कि ये democratize करता है information, सबको voice देता है, जो कि Twitter platform का actual use है. तो shape भी बहुत सोच समझ के डिजाइनर्स चूज करते हैं. Okay. Next, moving ahead, this is color. कलर एक सबसे बेसिक एलिमेंट होता है जो कि लाइट को इन्वॉल्व करता है. एवरीवन नोज कैसे किसी एलिमेंट पे लाइट पड़ती है एंड फिर वो रेटिना पे रॉड एंड कोन्स यूज करके हमें एक कलर परसीव होता है. एंड एवरी कलर यू सी हैज अ One question. डिफरेंट. मानवी, one question. ये कलर तो है, बट ये इमेज किस चीज की है? प्लीज आंसर इट. गर्ल्स कैसे नो आप बेटर. परसीव करो. मेकअप पैलेट Eyeshadow palette. रूबिक्स क्यूब भी हो सकता है. रूबिक्स क्यूब तो नहीं तो होगा क्योंकि मैचिंग एलिमेंट्स नहीं है. राइट. ओके. हाँ मैम शायद मतलब मेकअप के हो हाँ आईब्रो सॉरी आई शेड्स हो सकते हैं.
आई सी इट सी है। मैं यूज नहीं करता, मुझे नहीं पता। ठीक, डाला तो है आपने कलर मैम। चलो कैरी ऑन। कलर का काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन की साइकोलॉजी पे, कि मतलब कैसा तुम फील कर रहे हो। ऐसे इंग्लिश में भी यूज करते सुना होगा ना, काफी ब्लू फील हो रहा है, ब्लू मून, ऐसा कुछ। तो एवरी कलर हैज अ स्पेशल कनेक्ट विद योर साइकोलॉजी, कि तुम्हें कैसा फील कराना है। ठीक है, तो गूगल को भी जब अपनी टेक्स्ट कलर के लिए लिंक के लिए टेक्स्ट कलर चाहिए था ना, तो उसने 41 ब्लू कलर के शेड्स को टेस्ट करा था कि कौन सा एग्जैक्ट कलर वो यूज कर सकते हैं जिससे सबसे ज्यादा लोग उस पर क्लिक करें, उस लिंक पे। तो कलर के पीछे भी काफी ज्यादा डिजाइनर्स काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है कलर को, एक ब्रांड की कलर पैलेट चूज करने के लिए, विच कलर्स गोज थ्रू इट, और उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा एक ऑडियंस पे। नेक्स्ट, हाँ, सो दीज आर फ्यू लोगोज, एंड उनका कलर क्यों ऐसा है वो उसमें लिखा हुआ है। एवरी कलर हैज एन फीलिंग, आई टोल्ड यू, एन इमोशंस दैट दे कनेक्ट टू यू। सो नेटफ्लिक्स इज लाइक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग, मूवी स्ट्रीमिंग या सीरीज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। सो it generally uses red color because when you watch movies it makes you like excite करता है तुमको। So Netflix uses the color red, right? And if you see all the banking apps and some social media apps just like Facebook हो गया, they use color blue because banking में और इन सब सेक्टर में you need trust, you need to be serious, and in social media you need to be serious about data security, encryption. So whenever you see those kind of websites in the same sector, you will mostly notice that they are using the color blue, right? एंड फिर ब्लैक देख सकते हो, मतलब मैं बेसिक मेन कलर्स बता रही हूँ, एवरी कलर हैज देयर ओन साइकोलॉजी। ब्लैक देख सकते हो, नाइकी यूज करता है, एप्पल यूज करता है। तो ब्लैक इज मोस्टली कि क्रेड यूज करता है, क्योंकि क्रेड इज कंसिडर्ड अ लग्जरी प्लेटफॉर्म, नाइकी इज आल्सो कंसिडर्ड एज लग्जरी ब्रांड, एप्पल सो they also black also gives you power, elegance, efficiency. Holding an iPhone versus holding a Samsung like me has a very vast difference. तो people देख लेते हैं स्टेटस में, तो Apple plays on that. उनकी पूरी वेबसाइट देख लो, it will be black in color, right? Black and white, these two colors they use, right? So one question for all of you is, लेफ्ट साइड में एक फार्मेसी की वेबसाइट है, उसमें पेस्टल कलर्स यूज किया है, और राइट साइड में मर्सिडीज की वेबसाइट है, वो ब्लैक में है। मतलब यू कैन यू टेल मी व्हाई? Can you repeat the question? लेफ्ट साइड में एक फार्मेसी की वेबसाइट है, ऑल्टो फार्मेसी करके, एंड इसमें पेस्टल कलर्स यूज हो रखे हैं, ऑरेंज का पेस्टल, पिंक, ग्रीन एंड ब्लू। जबकि राइट साइड में मर्सिडीज की वेबसाइट है, दैट एंड दे आर यूजिंग सिल्वर ग्रे, सॉरी सिल्वरिश ग्रे एंड ब्लैक कलर। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? कैन यू टेल मी? मैम फार्मेसी वाले जो है रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील कराना चाह रहे हैं। एंड राइट साइड में They मैम want to give राइट a look of साइड elegance. अटेंशन खींचने। मतलब सही था। इट्स लाइक पेस्टल कलर्स जहां भी तुम यूज करके देखोगे ना, तो काफी लाइट होते हैं, काम होते हैं और सूदिंग से होते हैं। तो तुम मोस्टली देखोगे पेस्टल कलर्स यूज हो रहे हैं फार्मेसी की वेबसाइट्स में, मेंटल हेल्थ एप्स में पेस्टल कलर्स काफी यूज होते हैं, या फिर जो वेट लॉस हो गया या जितनी भी चीजें वेल बीइंग से रिलेटेड है, यू विल सी कि वो लोग पेस्टल कलर्स यूज कर रहे हैं, because user is coming to get a solution there, so they want them to calm their nerves, and उनको वो फील देना पड़ता है, वो प्लेस देना पड़ता है। काफी सोच समझ के हमें किसी भी चीज के लिए कलर्स लेने पड़ते हैं। बाकी जबकि तुम एक मर्सिडीज खरीदने जाओगे, इट्स अ सिंबल ऑफ प्रेस्टीज, इट्स अ सिंबल ऑफ स्टेटस फॉर यू। वहां पे अगर तुम रेड येलो कलर देखोगे, हाउ विल यू फील? मतलब हाउ विल यू फील? कैसा लगेगा? मतलब it won't make sense, right? And black is generally associated with luxury, with everything. You have been wired like this from a long time. So that's why these how colors come into play. And yeah, so this is generally a 2D shape.
that is making us see, right? But if you can adjust, you can take this rectangle and you can adjust the shade of blue. So you can also perceive it as a 3D shape, right? So from this image, you can also see how colors can help you to add depth to your imagery, depth to your logos and illustrations. So coming to next is line. Line is something you draw 2 points and connect them, and it doesn't matter it's straight, it's wavy, or it's how it is. If you connect 2 points, whatever you get is a line. From a point, you can create a line, and using lines, you can create shapes. You can create anything using lines. So lines are mostly used in design to lead your eyes to a certain way. Whenever you see a line, you look at that way, right? So generally फोटोग्राफी में भी देखते होगे ना, जहाँ पे रेल की पटरी होती है, यू टेंड टू सी कि उस डायरेक्शन में तुम देख रहे हो. आगे एग्जांपल भी आएगा, बट यू नो हाउ लाइंस कैन लीड यू टू समवेयर. एंड प्रोडक्ट्स में जहाँ पे तुम भी लाइंस देखते हो, यू नो कि यहाँ पे एक चीज खत्म हो रही है, अब दूसरी चीज आ रही है, राइट? गूगल डॉक्स में भी जब तुम लाइन या पेज ब्रेक इंसर्ट करते हो तो उसके बाद नई चीज लिखते हो, तो लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दो चीजों को ब्रेक करने के लिए, तुम्हारी आईज उस डायरेक्शन में लीड करने के लिए. इस इमेज में बताओ हाउ Excuse me, I have a question, Manvi. Can you relate the lines and Mercedes symbol? Actually, that is also seems to be connecting lines. So, is there any meaning in that? this one? Yeah, this one. It is also connecting the lines and merging them together and then going out. So, can you relate both the things as you have explained? A Mercedes symbol is mostly, I feel mostly like कि ये स्टेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है. मतलब I have to look on Mercedes की philosophy, मतलब brand psychology. Basically, yeah. So I will answer this. So basically, इस लोगो की दो प्रॉपर्टीज है कि जो सेंटर में जो एरो टाइप से लिख रहा है वो ट्रिनिटी को शो करता है, एंड देन द सर्कल आउटसाइड दैट लोगो is the thing जो कि repeat कराता है, like it's a round circle, so it's give the impression of a repeat your cycle. So like if someone came to buy a Mercedes, next time when he's changing the car, he will always go for Mercedes first, then they leave any other brand. So basically this is the round circle to show the you will back to our business or back to our company to purchase new one. So it's something related to that. You're getting my Okay. So it is similar to the Apple, just like the Apple. If you if you have an Apple phone, so you have to buy an Apple Watch. You have to buy the Apple earpods. So it is similar like that. If you buy a Mercedes, you have to come back to Mercedes again and again. Yeah, actually, Like so that. my point is I want to say that your choice will be first as a Mercedes. You maybe go for maybe Audi, maybe BMW or anything, but you will consider Mercedes as your first choice. I'm saying that, right? In case of Apple, you are mentioned. So in Apple, what's happened is it's more of a ecosystem. Like they are providing you the functionality so fast that you can transfer data in seconds in his ecosystem. So it's bit different. Okay. And second question mine was the Mercedes background isn't black color. That is showing you the power, the legacy. But the Mercedes cars came in, but the Mercedes car came in like very different types of color, like blue, yellow, and different colors. So that also gives me the same feeling. I am driving a Mercedes. I am having a Mercedes GLA. I am having that one car. So why they are not using the black color in all their cars for their legacy and that thing like that? Yeah, so basically this is a business game basically. So if someone is going to pay you,
handsome amount for any color, then why you are only fixing yourself to the black color? And basically this is only the overview for like website. Why they use black color is there is a reason. There is a reason that their logo is more visible. Any color like blue color, they're signing with the blue color in the car with the blue color. They're signing will be more visible on black background. So that's why they are using the black color. Like when we move forward in the deck, there is a principles of design where we try to learn what is contrast and how we create contrast. So उससे better clarity आएगी तुम्हें कि why they use black as a background. Okay, okay, I got it all. Thank you. Yeah, And Thank you. इसका symbol has these 3 pointing things because they tell us कि वो काफी ज्यादा मतलब they are dominating land, sea, air. मतलब it's like they are the ruler of that. That's what it also represents. Okay. Right. Yeah. So coming to this again, yeah. Can you give your views how lines are used in this image? To divide different sections. To show the depth of the ocean and the height of the like mountains. No, we are talking about this Zoom snippet right now. The scroll bars basically. Okay. Okay, yeah. So you were right about this image. If there were no lines, you will be confused about when the other section is starting and everything gets mixed up in your mind, right? So lines also play a very important role, how you perceive the designs, right? There is a clear breakage between the featured section and the trending section, and you can easily navigate through the interface like this. And second example of this is iPad Air. So this is how lines are used in logos. So AIR is mostly used made by the help of lines and with the help of blue tones and hues. Uh, it's giving a vibe that is similar to its name. So that's how you can use lines, values. You haven't studied contrast, but yeah, lines and values, and to generate realistic effects. Next, we are going to talk about typography. It's like how you arrange letters and text की वो legible रहें, आसानी से तुम उनको read कर सको, and कैसे वो visually appealing दिखें. तो अगर higher level पे जाते हैं, you will mostly encounter 2 types of font. वैसे तो बहुत सारे हैं, sans serif और serif font. Serif font are mostly सेरिफ फॉन्ट जो होते हैं वो काफी ज्यादा डेकोरेटिव लाइंस होती हैं एंड्स में, यहाँ पे देख सकते हो एल के आगे से पॉइंटेड सा है और यहाँ भी पॉइंटेड सा है, ई का बीच वाला देख सकते हो. तो जनरली these are very type of classical in nature and they carry a feeling of trust and respectability. तो जो काफी पुराने ब्रांड्स होते हैं जो कि अथॉरिटी और ग्रैंडियर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो सेरिफ फॉन्ट्स यूज करेंगे. इट्स लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया का फॉन्ट देख लो, वो हो गया. और जो सैंस सेरिफ फॉन्ट होते हैं, दोज आर बिट ऑफ क्वाइट मॉडर्न, थोड़े से प्लेफुल होते हैं एंड दे गिव यू अ फीलिंग ऑफ ऑनेस्टी एंड सेंसिबिलिटी. तो इनमें कोई डेकोरेटिव एलिमेंट नहीं होता है जो तुम्हारी आईज को कहीं पे डिस्ट्रैक्ट करेगा या मैसेज को क्लाउड करेगा. So when you are trying to use that type of text or want to create that type of feeling, तो तुम open sans use करोगे. Next, yeah. So can you tell me what is wrong in this image? Their text. What's wrong with the text? Font is different than. Right. So they are giving a different vibe from how you generally perceive it, right? So this font used, does anyone know what font is used? It's quite very famous font, and Lothhead.
from mostly all of the designers. Comic Sans. Right, right. So yeah, so you can see, right? If you can switch the font, how you perceive the brand changes. If you see Chanel like this, it's a luxury brand, but it's like seeing it written in a playful way doesn't give you that luxury imagery that you have in the mind. Next, how do you feel after reading this? Anxious. Anxious. Yeah. So you can see if fonts use certain way and with the help of other elements like lines and shapes can make a imagery or a visual embark some emotions in you, right? So fonts are a very important tool set that you can use in your designs to create emotions to leverage other people emotions. Yeah. And this, I guess everyone played this game when they were small. So this is Pac-Man. This is a font that you can easily get by the name Crackman. So they have bold, playful letters because mostly kids play this game when they're small. So it is visually appealing for kids and uh, having these uh, having these dots and other elements added to making it more playful and exciting. So that's how you use font. Now coming to last second part, that is texture. Texture is simple how a surface feels, and in digitally you can't feel, right? So a perception of how a surface can feel. So अगर एक नॉर्मल सॉलिड डिजाइन बना दोगे इन नॉर्मल ब्लैक कलर की दैट विल फील मोनोटोनस काफी टाइम के बाद, जैसे अभी ये बैकग्राउंड काफी मोनोटोनस सा लग रहा होगा पीछे, बट अगर इसमें कुछ टेक्सचर होता, ऑल्दो मैंने इसमें टेक्सचर डाला नहीं है क्योंकि आई वांट यू टू फोकस ऑन टेक्स्ट मोस्टली, तो जनरली किसी भी डिजाइन में अगर टेक्सचर नहीं होगा, तुम कोई फैब्रिक दिखा रहे होगे उसमें कोई टेक्सचर नहीं होगा, तो you won't get the feeling कि वो कैसा है, you won't be able to connect with the product that is there. So texture is also very important that you can add in your design to create more dynamic, visually appealing experience. So this is you can see the texture in this bag, right? If it was a plain black color bag versus if you see this bag, you will perceive the value of this bag to be more than the solid plain black. And generally, the brands use textures in their imagery because texture and thinking about human psychology, when you see texture, it makes you feel like it's more natural. So there is more natural connect to it. So you will be picking this option over the traditional black solid one option. And yeah, can you tell me how texture is used in this? It's the leaves of the tropical trees, like it's representing that in the text. Right, right. So yeah, as you can see, you read the name Hawaii, you read the name Kona. So you are primed that yeah, these must be leaves because we are talking about Hawaii. So this must be a tropical area, or so that's how text visually relates to you. If it was simple, plain written Kona with just like how this Hawaii is written, would you be paying attention if this was in the poster, if this was lying, if this was a photo frame in your room? Would you be paying attention? Would you even made it a photo frame in your house? No, right? So that's how texture makes you relate to what is natural, while at the same time making it more visually appealing. The last one is space. स्पेस इज समथिंग ऐसा समझ सकते हो, कोई भी एक एरिया है तो उसके आसपास अबव बिलो अराउंड बिहाइंड जो जगह होगी, दैट इज रेफर्ड टू एज स्पेस. वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो निगेटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव मतलब कुछ एलिमेंट्स होंगे, निगेटिव मतलब कि वो पूरी तरीके से ब्लैंक होगी, खाली होगी, मतलब वाइट एरिया होगा, राइट? तो इस क्या बोलूं, इस इमेज में you can see it's like there is an apple
and you can see two shapes, right? Everyone can see that, huh? One of a boy and one of a girl. Yes. Yeah. Yeah. So that's how, without using much of the elements, that you can create a man and woman. But see how white space come into play, and with very diligent and thoughtful use of it, you can make very, very appealing designs with justified use of white space. It will save you a lot of effort. It's a very, very, you can say, important tool. If you know how to use white space in your design, you can save you a lot of much efforts, and will impart depth to your posters, depth to your illustrations, anything. Yeah, and this is one logo of WWF that is made just using white space. They can have made the full panda anyway, but they use the white space judicially to make the logo. It's so easy, and just with few shapes you can see a picture of panda. Now you saw, it's like, what are the elements that were needed to make your composition, right? So तो अब उनको यूज कैसे करना है, कहाँ पे करना है, मतलब कोई रूल्स होंगे, कुछ तो होगा यूज करने के लिए। तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन आ जाते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन रिफर्स कि एलिमेंट्स को कैसे यूज करना है कि जिससे तुम्हारी इमेज में सिमेट्री दिखे, बैलेंस दिखे। तुम किसी चीज को अगर इम्फेसिस करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि यूजर सबसे पहले ये देखे, तो तुम कैसे करोगे, प्रोपोर्शन कैसे दिखे। तो जब उन सारी चीजों को अगर हेलो हाँ हेलो मानवी, एक मिनट। सो पहले ये जान लेते हैं कि बंदे बोर तो नहीं हुए, गाइस? नो सर। इतना सारा नो सर। इतना सारा ज्ञान लेके नो सर। सर नहीं बोलो, डोंट से मी सर, मैं विवेक हूँ, विवेक बोलोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है? तो देन अकॉर्डिंगली वी विल कैरी ऑन, नहीं तो यहीं पे एंड करके Q&A भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू आर बोर्ड, बट इफ हमें आगे कवर करना है तो हम आगे भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज 12 प्रिंसिपल्स है, राइट? 10 ऑलराइट। सो व्हाट यू से गाइस? मतलब So Q&A practical करके uses वापस दिख चल रहा है। सकते हो, या कैसे भी कर सकते हो, बाद में कर सकते हो। प्रैक्टिकल small मतलब दिख रहा है तो Q&A. इतना बोरिंग नहीं है। Yeah, we can move forward, I guess. ऑलराइट, मूव फॉरवर्ड, कैरी ऑन। ओके, ठीक है। मतलब मजा आएगी। ये प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन तुम लोगों को काफी हेल्प करेंगे, जितना भी क्लब का काम करना है, पोस्टर्स करना है, सब में अच्छा काफी हेल्प करेगा। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है, कॉन्ट्रास्ट का होता है। किसी ने माइक खोल दिया। हाँ, तो हाँ, मतलब कभी ऐसा देखा है कि तुमने कभी किसी दिन कोई मैगजीन का कवर देखा जिसमें काफी ब्राइट रेड कलर का पेज हो और वो डाइट येलो कलर से टेक्स्ट लिखा हो? तुम्हारी आंखों में चुभता है कि ऐसी चीजें जब तुम पढ़ते हो? मतलब कभी नोटिस किया है क्या? यस। हाँ, तो मतलब ऐसी काफी जगह होता है जहाँ पे यू थिंक कि काफी चीजें बेटर हो सकती थी। एंड जैसे कि डिजाइन इज एवरीवेयर अराउंड अस। तुम्हारे जो स्विच बोर्ड पे भी जो तुम्हारा लिखा रहता है टेक्स्ट, जो भी लेबल होता है, कहीं भी लेबल होता है, हर जगह कॉन्ट्रास्ट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। अगर वाइट चीज पे तुम लाइट ग्रे से लिख दोगे तो नहीं दिखेगा। अगर मैं यहीं पे लाइट ग्रे से हेडिंग डाल देता, टेक्स्ट लिख देता, तो तुम लोग को नहीं दिखता। काफी ज्यादा, सॉरी, डार्क ग्रे से लिख देता जो बैकग्राउंड के कलर के बहुत पास में है, तो तुम्हें नहीं दिखता। तो एवरीथिंग यू सी हैज कॉन्ट्रास्ट इन्वॉल्व इन इट। एंड हम कॉन्ट्रास्ट जब भी यूज होगा तो वो उस चीज पे एम्फेसाइज करेगा, क्योंकि तुम उससे डिफरेंट हट के कलर जब चूज करोगे तो उस चीज पे तुम्हारी आईज जाएंगी, वो फोकल पॉइंट क्रिएट होगा। तो वहां पे कॉन्ट्रास्ट आता है। अब कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कैसे करना है? लाइट बैकग्राउंड है तो डार्क से लिख दो। कोई चीज, हर जगह पतली लाइन है, एक बहुत मोटी लाइन बना दो तो तुम वहीं पे देखोगे। बहुत सारी छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, अचानक से तुम एक बड़ा सा सिलेंडर रख दो तो तुम्हें वही दिखेगा, राइट? कोई चीज बहुत ज्यादा डल है, मतलब मान लो ग्रे बैकग्राउंड है,
उसमें से बीच में तुम्हें एक ऑरेंज अम्ब्रेला दिख रहा है तो तुम वहीं पे देखोगे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा सराउंडिंग में कुछ भी हो रहा है। तो ऐसे कई तरीके से हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं। वेयर यू वांट यू एंड योर टारगेट ऑडियंस, मतलब जितने लोगों को भी तुम दिखा रहे हो, जहां पे तुम उन्हें दिखाना चाहते हो, यू विल यूज कॉन्ट्रास्ट। इस पिक्चर में देखो, मतलब ये पढ़ पा रहे हो क्या? मतलब पढ़ तो पा रहे होगे बट कितनी आसानी से पढ़ पा रहे हो? Not very clearly. राइट, इन दोनों में से कोई भी सही से नहीं दिख रहा, बट इफ यू सी दिस टेक्स्ट, कैन यू सी इट क्लियरली? मतलब सब समझ आ रहा है, हर कैरेक्टर अच्छे से विजिबल है, राइट? Yes. So that's how you use contrast in your design. Next is, तुमने रोड पे देखा होगा कि जो स्टॉप सिंबल्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा, सबसे पहले रेड कलर होता है, उसके ऊपर जो स्टॉप साइन में उसके ऊपर व्हाइट कलर से लिखा होता है। इट्स अ वेरी हाई कॉन्ट्रास्टिंग, रेड है उसके ऊपर व्हाइट। तो अगर वो पिंक से लिख देते या फिर कुछ रेड का ही टोन लिख दे रख देते जो रेड के काफी पास होता, ठीक है, तो तुम्हें नहीं दिखता। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन जो कि तुम्हें रोड पे नोटिस होना चाहिए, स्टॉप, वरना एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। सो दिस इज वेयर यू सी कि कॉन्ट्रास्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे होता है, ठीक है? एंड डज एनीवन नो कि मतलब ये रेड क्यों यूज करते हैं इधर? ये हम Yeah, लोग का because attention चाहिए because it's an important thing. काफी दूर से विजिबल रहता है रेड कलर, और फॉगी वेदर में भी विजिबल रहता है, दैट्स व्हाई। राइट, हाँ, मतलब रेड ज्यादा स्कैटर नहीं करता। स्कैटरिंग लो होती है ना, वेवलेंथ ज्यादा होती राइट, वही, अब रेड के ऊपर से हम व्हाइट पे ही लिख सकते हैं। ब्लैक ऑल तो उतना अच्छा मैच नहीं होगा इस पे, क्योंकि ये थोड़ा सा वाइट रेड है, ब्राइट रेड है, ठीक है? जनरली तुमने देखा होगा रेड के ऊपर व्हाइट से लिखा होगा, काफी हाई कॉन्ट्रास्टिंग होता है। तो जो भी कलर व्हील होता है ना, उसमें अगर तुम ऑपोजिट कलर्स को देखोगे, जो एक साइड होंगे और जो दूसरी साइड होंगे, अगर तुम उन दोनों को उठाओगे तो काफी हाई कॉन्ट्रास्ट रेशियो बनेगा। नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस ये होता है कि हर तुम्हारी डिजाइन में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, मान लो 3-4 सर्किल है, एक काफी बड़ा सर्किल है और 3-4 छोटे सर्किल है। अब तुम कैसे उनको अपनी डिजाइन में प्लेस करोगे कि वो डिजाइन बैलेंस लगे, ऐसा ना लगे कि मतलब कि मैं सिर्फ यहीं पे देख रहा हूँ और मतलब अजीब सी डिजाइन लग रही है। कभी कभी देखा होगा ना, इतनी बड़ी इमेज होती है और एक छोटा सा बगल में टेक्स्ट होता है, तो उसमें बैलेंस नहीं होता इमेज में। And balance is how elements in compositions are arranged. Symmetrically हो सकते हैं, asymmetrically हो सकते हैं, या radially भी हो सकते हैं, जिससे कि हम इक्वल बैलेंस बना पाए डिजाइन में। एंड ये काफी फेमस फोटो है, एक जापानीज पर्सन ने बनाई है। तो क्या तुम बता सकते हो उसमें कौन सा बैलेंस है, सिमेट्री, एसिमेट्री, या फिर बैलेंस है भी कि नहीं? पानी लेफ्ट में भी ज्यादा हाइट पे है, राइट में भी जा रहा है। लेफ्ट में कुछ ज्यादा ही हाइट पे? मतलब थोड़ी इंक्रीजिंग दिखाती है ना राइट में, कि राइट में भी जा रहा है, तो बैलेंस हाँ, है मतलब पूरा। इट्स ऐसा अ लग रहा है कि it's a बताओ ऐसा लग रहा है there is another wave in the front. यहाँ पे। बैलेंस नहीं है शायद, राइट वाला पोर्शन काफी मिनिमल लग रहा है। मतलब सी इज टर्बुलेंट, सो अनबैलेंस दिखाना ज्यादा सही रहेगा ना। हाँ, मतलब ये सिमेट्रिकल बैलेंस नहीं है, मतलब अगर तुम इस पिक्चर को बीच से डिवाइड करोगे तो इधर का पोर्शन सेम तो नहीं दिखेगा, बट इसमें एसिमेट्रिकल बैलेंस है, क्योंकि तुम देख सकते हो एक वेव की हाइट कुछ ऊपर तक है, यानी एक सेकेंड रुकना। तो वेव की हाइट कुछ ऊपर तक है, तो इट इज शोइंग कि यहाँ पे ऐसे करके वो फ्लो के आएगी। एंड यू कैन ऑल्सो सी कि बोट्स और जो पीपल हैं वो भी तुम वहां पे देख सकते हो, दे आर गोइंग डाउनवर्ड्स, तो इट्स ऑल्सो क्रिएटिंग अ मोशन, एट द सेम टाइम इट्स क्रिएटिंग अ asymmetrical balance. And हाँ, this photo basically the also, depth basically the हाँ, height of the wave and the depth of the sea, so they are creating something. right. And ठीक है, आगे आगे पहुंचे एक चीज और बताऊंगा, ठीक है? हाँ, एंड इस फोटो में और बताना उसी मतलब क्या। इमेज, एक बार मानवी बैक जाओगे प्लीज। इसी हाँ, इमेज में एक और प्रिंसिपल भी लग रहा है जो काफी लोगों ने सुना होगा, तो कोई गेस करेगा कि कौन सा वो है?
लाइक फोटोग्राफी वाले काफी यूज करते हैं उसको, इफ थर्ड्स एनीवन का इज फ्रॉम रूल ऑफ फोटोग्राफी थर्ड्स, मतलब व्हाट? रूल ऑफ थर्ड्स। ओके ओके राइट, उससे कोई वो भी ज्यादा है प्रेवलेंट बट गोल्डन रेशियो दिख रहा है किसी को इसमें? हाँ दिख रहा है वो वेव्स में, फिबोनाची नंबर वाला। वही एग्जैक्टली, तो गोल्डन रेशियो काफी हेवीली यूज है इस इमेज में, दैट्स व्हाई काफी विजुअली अपीलिंग है। काफी प्रोपोर्शनेट लगती है, इस वजह से ये इमेज तभी बैलेंस्ड है, भले ही सिमेट्रिकल बैलेंस हो। मैंने सोचा था आगे जाके बताऊंगा, बट हाँ इस इमेज में बताओ, इसमें क्या है? सिमेट्री है, सिमेट्री है, रेडियल बैलेंस है, क्या है? सिमेट्री। राइट, मतलब काफी सिंपल सी ज्योमेट्रिकल इमेज। ज्योमेट्रिकल सिमेट्री है, मॉन्यूमेंट ही ऐसे क्रिएट हुआ है, ठीक है। पिक्चर में भी सिमेट्री है, राइट, ठीक है। तो दैट्स मतलब अगर यही यही ताजमहल में मैं बस फोटो यहाँ से लेता, इतना क्रॉप कर देता, ये 3 पिलर ही दिखते, तो क्या तुम्हें वो देखने में उतनी अच्छी लगती? नहीं। नहीं लगती ना। हाँ, तो दैट्स हाउ बैलेंस कम्स इनटू प्ले। बैलेंस भी काफी सोच समझ के यूज करना पड़ता है, मतलब इट कैन बी क्रिएटेड बाय यू, मतलब खुद से भी बना सकते हो, इट कैन बी प्रेजेंट इन नेचर, कैसे भी कैप्चर कर सकते हो। नेक्स्ट इज एम्फेसिस, ठीक है। ये एम्फेसिस का मतलब होता है कि तुमने इतनी सारी चीजें अगर तुम्हारे पास है, तुम किसी एक इंसान का अटेंशन उस पर ड्रॉ कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो इतने सारे सर्कल सारे एक जैसे हैं, बट अगर मैं एक सर्कल को अलग कलर का कर दूं और इस पे शेडिंग कर दूं, तो इट विल लुक डिफरेंट, राइट। इतनी सारी हेडिंग व्हाइट कलर की थी, एक हेडिंग में रेड से कर देता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ 4, तो यू विल नोटिस इट मोर देन अगर तुम पूरी स्लाइड एक बार में देख रहे होगे, तो यू विल नोटिस दिस फर्स्ट, बाकी चीजें बाद में देखोगे। तो अगर तुम्हें डिजाइन में कभी भी किसी एक जगह पे अटेंशन क्रिएट करानी हो, एक फोकल पॉइंट देना हो कि यूजर यहाँ पे देखे, तो देन यू यूज प्रिंसिपल ऑफ एम्फेसिस। और एम्फेसिस तभी आएगा जब तुम्हारी डिजाइन में कॉन्ट्रास्ट होगा ना। जब पहली बात, एम्फेसिस के लिए कॉन्ट्रास्ट तो चाहिए, मतलब तुम्हें अगर अटेंशन देनी है तो किसी को दिखना तो चाहिए, तो जब तक कॉन्ट्रास्ट होगा तो एम्फेसिस अपने आप आ जाएगा। इस कवर में बताओ एम्फेसिस कैसे क्रिएट हो रहा है, मतलब 2-3 तरीके से हो रहा है। टेल मी हाउ। एक वो जो तो भाई कल कॉन्ट्रास्ट है, वो ऑरेंज के ऊपर रेड आ गया है और ब्लू की सराउंडिंग में। एक कलर का और एक direction of फेस ऑफ the पोजीशन। head is facing. राइट, हाँ, मतलब इतने सारे ब्लू हेड्स के बीच में एक हेड उल्टा फेस कर रहा है, उसका भी कलर अलग है। तो इन सारे ब्लू हेड्स पे तुम भले ही मत ध्यान दो, तुम्हारा इस हेड पे ध्यान जरूर जाएगा, सबसे पहले यही तुमने देखा होगा मोस्टली, ठीक है। उसके बाद जो टाइटल है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, वो सबसे बोल्ड में है, तो वो अपना एम्फेसिस अलग क्रिएट कर रहा है। यू विल लुक एट द टाइटल ऑल्सो। जब तुम टेक्स्ट के थ्रू जाओगे तो तुम टेक्स्ट को देखोगे, सबसे आखिरी में तुम इसको देखोगे, दैट डजंट हैव एनी, जो तुम्हें इतना कंसर्न भी नहीं करेगा। फिर जो सब हेडिंग है वो रेड से है, राइट। तो काफी तरीके से इस बुक कवर में एम्फेसिस क्रिएट हो रहा है। एंड इस इमेज में ये तो काफी सिंपल है, ऑल्दो सारी ब्लू वॉल्स के बीच में एक येलो बॉल है, एंड ऑल ब्लू वॉल्स आर काइंड ऑफ सैड इमोजीज एंड दिस वन इज लाफिंग। तो इफ यू सी दिस, तुम सबसे पहले तुम्हारी जो आईज है वो येलो बॉल की तरफ ही जाएंगी। तुम अभी भी नोटिस कर सकते हो व्हेन यू आर सीइंग दिस इमेज, तुम कहाँ पे फोकस कर रहे हो, राइट। तो ऐसे करके तुम अपने फोटोज में, पोस्टर्स में, डिजाइन में एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू प्रोपोर्शन, जिसकी हमने वो वेव वाली इमेज में बात करी थी। तो इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि डिजाइन में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बट और उन वो सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दैट्स हाउ समथिंग फंक्शंस, की सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। एंड जो चीज बड़ी होती है दैट इज मोस्टली इम्पोर्टेंट परसीव करता है ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो ये एक बेसिक रूल है, जो लार्जर एलिमेंट्स होंगे वो तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट परसीव करोगे rather देन स्मॉल एलिमेंट्स। कभी भी बुक पढ़ोगे तो सबसे पहले टाइटल पढ़ोगे,
कभी भी कुछ भी करोगे तो सबसे पहले सबसे बड़ी चीज देखते हो, उसके बाद तुम यू गेट टू बॉडी, यू गेट टू एनीथिंग एल्स, यू गेट टू हाँ हाँ मतलब कुछ भी। तो दैट्स हाउ प्रोपोर्शन कम्स इनटू प्ले कि कैसे रिलेट करवाना है सब चीज को। अब सब चीज को सेम साइज का कर दोगे, अब मैं ये भी इतना साइज का रखता, मैं इस टेक्स्ट को भी प्रोपोर्शन के साइज के रख देता, इनको भी रख देता, देन तुमको लगता है कि सबका इक्वल इम्पोर्टेंस है, एंड हाउ विल यू गेट टू नो कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो इस इमेज में बताओ हाउ प्रोपोर्शन कहाँ पे प्ले हो रहा है सबसे ज्यादा। On the price. और price, और कहीं on the टैबलेट की product. इमेज टैबलेट की इमेज पे Buying now and add to cart options. 64 GB and Wi-Fi only. इनका वेट अलग है। हाँ इस टैबलेट की इमेज पे हो रहा है। वी ऑल्सो हैव स्मॉल इमेजेस जो कि क्यू कर रहे हैं कि और भी और इमेजेस हैं लाइन में, बट दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इमेज दैट यू आर सीइंग, राइट। यहाँ पे तुम्हारा फोकस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द साइड बार। सेम फॉर प्राइस, जब प्राइस स्ट्राइक आउट हो चुका है, दैट इज ऑफ मच लेस इम्पोर्टेंस देन द प्राइस दैट यू आर गेटिंग दिस iPad फॉर, दैट इज 14,900, राइट। सो ऐसे वेबसाइट्स पे तुम काफी जगह एम्फेसिस क्रिएट करते हो। अब मैं अगर ये सारे iPad को सेम इमेज का रख देता, एक तो पहले ये चीज बहुत क्लटर हो जाती, इतने सारे iPads एक साथ, राइट। एंड फिर तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हें कौन सी इमेज देखनी है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है व्हेन यू आर डूइंग एनी टाइप ऑफ डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, एनी टाइप ऑफ डिजाइन। एंड दिस इज डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ प्रोपोर्शन। तो इसमें बता सकते हो मतलब कैसे लग रहा है प्रोपोर्शन का प्रिंसिपल। पिज्जा ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी जो साइड में रखे उनसे। On the paneer pieces. हाँ मतलब जनरली चीज है इंडियन यार। कुजीन में भी देखोगे तो जो मेन डिश होती है दैट ऑक्यूपाइज वेरी बिग स्पेस। इटालियन में भी काफी, जापानीज खाने में तो काफी होता है, उसमें तो अलग से होता है मेन डिश और साइड डिशेस। तो प्रोपोर्शन का फन प्रिंसिपल ये फैक्ट होता है बताता हूँ, क्या। थोड़ा फन फैक्ट बता देता हूँ एक, मतलब थोड़े बोर हो रहे होगे तो फन फैक्ट बता देता हूँ। मानवी इज ह्यूज फैन ऑफ जापानीज कल्चर, तो ये जापानीज भी सीख रही है, तो ये जापानीज की काफी रेफरेंस देती रहती है। जैसे तुमने पेंटिंग देखी तो इसलिए इसने जापानीज, और एनिमे का भी सजेशन ले सकते हो, कैफे एनिमे देखती है तो मैं इससे ही सजेशन लेता हूँ एनिमे के लिए, और जापानीज भी सीख सकते हो। और by like third year में she got the opportunity to work at Japan also. She cracked the, कौन सी कंपनी थी वो, विलिंग्स राइट, जापान की थी ना वो भी। हाँ तो जापान की कंपनी में इनकी इंटर्न भी थी, तो दैट्स आल्सो अ फन फैक्ट। चलो कैरी ऑन करते हैं अब। ठीक है, मतलब दैट्स हाउ यू नो कि प्रोपोर्शन कैसे बड़ा रोल प्ले करता है, काफी मेजर रोल प्ले करता है डिजाइन में, डेली लाइफ में। हर चीज अब तुम्हें सेम साइज की दे देंगे तो यू विल बी कंफ्यूज कि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या नहीं है, राइट। एक सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट इज हायरार्की। हायरार्की विजुअल डिजाइन का प्रिंसिपल है जो कि जनरली एलिमेंट्स में भी यूज होता है, टेक्स्ट में भी यूज होता है कि इम्पोर्टेंस किसकी ज्यादा है। तो जिसकी इम्पोर्टेंस होती है या तो वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, काफी ज्यादा बोल्ड होता है, मतलब कैसे भी तुम मैनिपुलेट कर सकते हो, उसका साइज बड़ा कर दो, कलर बड़ा कर दो, वेयर यू वांट योर यूजर टू लुक फर्स्ट, ठीक है। और जितना बड़ा एलिमेंट होगा, जितना ज्यादा उस पर एम्फेसिस होगा, पीपल विल परसीव कि वो चीज उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एक एग्जांपल लिखने से यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। इट्स लाइक रीड, ट्राई टू रीड दिस। ठीक है, तो मतलब this big text is like very has a very big font size, has a very big font weight as compared to this body text and this subheading, right. तो
तुम कहीं से भी हो, तुम कहीं से भी आ रहे हो, योर आईज विल ड्रॉ टू दिस, यू विल रीड दिस फर्स्ट, राइट? उसके बाद यू विल रीड दिस, एंड if this will excite you, then only you will read the body, otherwise you won't. ठीक है, तो that's how hierarchy come into place. अगर ये सब सेम साइज का होता, then you won't be reading anything, या फिर तुम पहली लाइन पढ़ के छोड़ देते. So this grabs your attention. न्यूज़पेपर में कभी देखा होगा, हेडलाइंस काफी ज्यादा बड़ी होती हैं, then there is body, उसमें वो बहुत सारी कहानी लिखते हैं, ठीक है. They have to grab your attention when you are reading the headline, कि तुम वो आके वो न्यूज़ वापस वो पढ़ो वो न्यूज़, एंड अगर तुम्हें वो अच्छी नहीं लगेगी, देन यू विल स्किप, राइट? सो इन दिस एग्जांपल दिख रहा है, मतलब ये न्यूज़पेपर का एग्जांपल लिया मैंने. यू कैन सी कि सबसे पहले तो पेपर का नाम ही हाईलाइट करना है, वरना डिस्टिंग्विश कैसे करोगे पेपर के बीच में. द न्यूयॉर्क टाइम्स, सबसे ज्यादा मेन वेट इसी को दिया गया है. इसका फॉन्ट भी देख सकते हो तुम, काफी स्टाइलिश सा फॉन्ट है, क्योंकि काफी पुराना ब्रांड है, तो क्लासिक फॉन्ट यूज किया है इन्होंने. तो अ सिटी टेक्स अ हार्ड लुक एट सेल्फ, तो ये देखना, ये एक मेन हेडिंग है. अब अगर ये हेडिंग एक्साइटिंग नहीं होगी, तो यू वोंट गेट इनटू रीडिंग की क्या डिटेल्स हैं इस पेपर की, राइट? सो दैट्स हाउ दे क्रिएट हायरार्की. अब अगर सब कुछ सेम साइज में लिखा होता, तुम कुछ नहीं पढ़ रहे होते, नथिंग, यू वोंट बी रीडिंग एनीथिंग. जब तक इट इज नॉट अ नॉवेल, इट इज नॉट एनीथिंग दैट इज लाइक वेरी कंटिन्यूअस. नॉवेल भी तभी पढ़ते हो व्हेन यू रीड द टाइटल ऑफ द बुक, the cover of the book that compels you, then only you read the novel. Next is repetition. Repetition is like कि तुम कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी आइडिया ले लो, उसको बार बार अपनी पूरी डिजाइन में कैसे भी रिपीट करते हो. तो इससे ये नहीं लगेगा कि तुम्हारी डिजाइन हर पेज अलग है, ऐसा नहीं लगना चाहिए. कि तुम ऐप चलाते हो, तुम्हें लगना चाहिए कि वो एक ही ऐप है. तुम एक मैगजीन पढ़ते हो, उसका पेज खोल के तुम्हें लगना चाहिए एक ही मैगजीन का पेज है. तो रिपीटिशंस यूज होता है डिजाइन में, कि जिससे हमें जो डिजाइन है ना वो पूरी यूनिफाई हो जाए. अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं, या तो हेडर्स के लिए सेम फॉर्मेट यूज कर लो, या तो कोई ऐसा पैटर्न डाल दो जो सेम जगह पे मिले, या तो जो आइकन्स हैं वो सेम तरीके से हो. अगर फील्ड आइकन यूज कर रहे हो तो फील्ड यूज करो पूरे में, या तो सेम कलर्स का यूज करो. ब्रांड के कलर पैलेट क्यों बनाता है, जिससे वो सारी जगह सेम कलर्स यूज करे, सारे जगह सेम टेक्स्ट यूज करे, कि तुम्हें लगे कि वो सेम ब्रांड की चीज है, राइट? तो रिपीटिशन ऐसे यूज होता है डिजाइन में. अब जैसे ये वाला स्विगी का स्क्रीनशॉट देख रहे हो, तो इसमें बता सकते हो कैसे यूज हो रहा है रिपीटिशन. Like we are saying 4 to 5 times pizza, so like the user will try to buy pizza, or he has the in the back of his mind it goes. रिपीटिशन कैसे यूज हो रहा है, मतलब इस डिजाइन में क्या ऐसे एलिमेंट है जो रिपीट होता रहे, रिपीट हो रहा है, या रिपीट होगा Food पूरे items. एप्लीकेशन में? नीचे जो फोटो सीन है है वो ऊपर के ऑप्शन सेम फॉन्ट में है. And orange color is repeating, I guess. Basically तो the group of dishes, like food का name जो पूरा एक ग्रुप है, वो तुम अगर नोटिस करो तो वो रिपीट हो रहा है पूरा एक ग्रुप. एंड आई ऑल्सो वांट टू आंसर कि वो पिज्जा वाला जो किसी ने आंसर दिया था, तो वो काफी डीप चले गए तुम. सो बेसिकली वो भी एक मार्केट स्ट्रेटेजी होती है, लाइक यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ अ यूजर. तो मे बी इस बंदे ने गूगल किया होगा कि आई वांट टू ईट पिज्जा, तो दैट्स व्हाई they fetch the data, and Swiggy also getting the data and showing you the pizza images, so that you will get a nudge कि हाँ यार चलो खा लेते हैं पिज्जा. तो ये थोड़ा ज्यादा ही डीप हो गया, सो बाद में डिस्कस करते हैं. मैं बताता हूँ क्यों आ रहा है पिज्जा, नेक्स्ट एग्जांपल में दिखेगा. इससे पहले भी पिज्जा का एग्जांपल था. ऑलराइट. तो हाँ, इसमें देखो, इसमें एक तो ये नैप बार है जो ऐसा तुम्हें हर पेज पे मिलेगा, दैट इज एट द सेम प्लेस विद मोस्ट ऑफ द सेम ऑप्शन, जो कि काफी एक्सेसिबल है. दूसरा, ये जो तुम फूड के कार्ड्स देख रहे हो, जो उसमें फॉर्मेट सेम है, नेम ऑफ द रेस्टोरेंट, कुजीन क्या है, रेटिंग क्या है, टाइम क्या है, कॉस्ट क्या है, मतलब कार्ड वैल्यू क्या होगी, डिस्काउंट क्या होगा.
अब इट इज रिपीटिंग इन अ सिमिलर वे, सारे कार्ड्स के लिए सेम चीज है, तुम कहीं अलग चीज नहीं देख रहे हो। तो मतलब अगर तुम एक कार्ड को ध्यान से एक बार समझ लोगे, यहाँ पे रेटिंग दिखाता है, तो नेक्स्ट कार्ड में भी तुम्हें पता है यहाँ पे रेटिंग दिखाता है, अचानक से कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। तो डिजाइनर्स यूज रेपिटेशन कि जिससे यूजर को काफी आसानी रहे कि जब वो उनका ऐप यूज करे, राइट। फॉन्ट हर जगह सेम रहेगा। अब यहाँ पे अगर वो 762 ऐसे मतलब रेस्टोरेंट में जो भी फॉन्ट यूज कर रहे हैं, अब अगर अलग नीचे जाके कुछ अलग फॉन्ट यूज कर देंगे तो यू विल फील वियर्ड कि मतलब तुम किस साइड पे आ गए, ठीक है। या तो ये काफी लाइट कर दे, कुछ भी कर दे। तो एक सेट डिजाइन सिस्टम होता है हर कंपनी का, वो पूरे जिसमें सब कुछ बटन से लेके टेक्स्ट फॉन्ट आइकन सब कुछ होता है कि डिजाइन को स्टैंडर्डाइज कैसे करा जाए, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं, इस वजह से और पिज्जा आ रहा था, मैं डोमिनोज का मेन्यू देखा था तो हाँ, इसमें इसमें बताना इसमें रेपिटेशन कैसे यूज हो रहा है। थोड़ा बड़ा कर दो आई गेस, Yes, we are so that like when we see the menu, we are seeing the blocks. Like we now see like the shrimp, the coconut calamari, and the grilled salmon. Like this is the signature dish of the restaurant, I think. ओके, हाँ। तो जनरली any मेन्यू other? इस तरीके से डिजाइन होते हैं ना कि तुम कोई भी पेज खोलो, यू गेट द सेम फॉर्मेट कि तुम इजीली स्कैन कर सको चीजें, ठीक है। अगर मैं एक जगह कैसे उल्टा सीधा लिख रहा हूँ, ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में अलाइंड लिख रहा हूँ, एक जगह इमेजेस के साथ लिख रहा हूँ, तो इट विल बी कंफ्यूजिंग फॉर यू कि मतलब इस मेन्यू को नेविगेट कैसे करना है। तो यहाँ पे जो तुम फॉर्मेट देख रहे हो, जो तुमने बताया अभी जो हमने, कि पहले डिश है, फिर उसके नीचे उसके इंग्रेडिएंट्स है, राइट, फिर ये जो नंबरिंग है जो भी है, पोर्शन साइज या कुछ भी, या नंबर कुछ भी हो सकता है, तो दे फॉलो अ सेम फॉर्मेट। अगर तुम एक बार ये कार्ड बना लोगे, यू कैन रेप्लिकेट इट, ठीक है, कि जिससे हर इंसान को पता चल जाए ये एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है, ये एक अलग एंटिटी है। एंड फिर तुम सेक्शंस को ब्रेक डाउन कर रहे हो, देख रहे हो हेडिंग का जो फॉन्ट है वो दैट इज डिफरेंट, जो कि इधर यूज हुआ है स्पेशल वालों में, राइट। फिर देन यू आर यूजिंग लाइंस सेपरेट करने के लिए, जो हमने पहले पढ़ा था एलिमेंट में, विजुअल डिस्टिंक्शन देने के लिए कि ये सेक्शन खत्म हो रहा है, देन यू आर मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो एंड यू आर रिपीटिंग द सेम काइंड ऑफ फॉर्मेट जो तुमने यहाँ पे क्रिएट करा है, यहाँ पे भी क्रिएट किया है, और यहाँ पे भी सेम रिपीटिशन की साइड में एक इमेज है, साइड में एक इमेज है। सो दैट्स मेक इट इजी फॉर यू कि तुम इस मेन्यू को इजीली नेविगेट कर सको और तुम्हें लगे कि ये एक ही रेस्टोरेंट का मेन्यू है, ओके। तो हाँ, नेक्स्ट इज वाइट स्पेस। स्पेस के बारे में हमने पहले भी बात करा था। वाइट स्पेस, उसका जो निगेटिव वाला पार्ट है, दैट इज मोस्टली वाइट स्पेस, जहाँ पे कोई भी डिजाइन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो वाइट स्पेस हम अब हर डिजाइन पीस में देते हैं, जिससे कि डिजाइन को स्पेस मिले कि तुम उसको इजीली रीड कर पाओ, और वो इतना ऐसा ना लगे कि सब कुछ एक ही पेज में तुमने भर दिया है या एक ही स्क्रीन में भर दिया है। अब अगर ये इधर उधर बाउंड्री नहीं होती एंड इट वाज लाइक अ स्लाइड इतना सा, देन तुम्हें कैसा लगता, विल इट वुड बी इजियर फॉर यू टू रीड और डिफिकल्ट फॉर यू टू रीड? हेलो, Difficult. थैंक्स। सो या, तो वाइट स्पेस का एग्जांपल ये दे सकते हो, दिस दिस डिजाइन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हैज वेरी वेरी लेस वाइट स्पेस, तो तुम्हें लग रहा होगा काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, एंड इट्स हार्डर फॉर यू टू इंटरप्रेट टू रीड। ऑल्दो हायरार्की है इसमें कि यहाँ पे ये चीज है, देन देयर इज कंटेंट, यहाँ पे इमेजरी, बट व्हेन यू सी इट, कंपेयर इट विद द डिजाइन ऑन राइट साइड वन इज मच मोर क्लियर, हाँ। So it is more legible for read and also a bit more visually appealing, although it can be improved. ये नहीं कह रहा हूँ ये best design है, but it's better on the image that is on left side, right?
कोई बता सकता है FedEx का लोगो नेगेटिव स्पेस कैसे यूज करता है? मतलब क्या खास बात है इस लोगो में? ई और एक्स के बीच में एक एरो बनता है। हाँ राइट, ई और एक्स के बीच में। तो FedEx is like a that delivers your thing, so it's for express delivery, right? So they use negative space in such a way that it forms an arrow between E and X. That's how you use white space in designing. Next we come to movement. Is हमारी जो eyes है, how do they travel एक design के ऊपर? तो जनरली एक डोमिनोज देखा होगा ना कि देयर आर सम पीसेस स्टैंडिंग, एंड अगर तुम एक बार एक को गिराते हो तो इट्स लाइक सारे पीसेस ऐसे गिरते जाते हैं, एंड योर आईज ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन की जैसे जैसे वो गिरते जाते हैं, ठीक है? तो दैट्स हाउ लाइंस एंड मूवमेंट शेप योर ब्रेन कि तुम उस साइड देखो। एंड मूवमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? या तो हम पोजीशनिंग चेंज कर दे, या तो हम किसी चीज पे एम्फेसिस करें काफी ज्यादा, या तो लाइंस ड्रॉ करें जो कि उसके थ्रू लीड कर रही है, या तो और भी बहुत सारे डिजाइन एलिमेंट्स हैं जिनसे तुम मोमेंट क्रिएट कर सकते हो। एक एग्जांपल ये है, कैन यू टेल मी कि कैसे डिजाइन, मतलब कौन सा डिजाइन एलिमेंट इसमें मोमेंट शो कर रहा है एंड हाउ? लाइन, कलर फोल्डिंग। हाँ लाइन भी है, कलर कोडिंग भी है, और कुछ? नीचे जो इलस्ट्रेशंस है। हाँ, so that Extra. that are also moving towards you, right? तो जो सारी बोल दिया ना, मतलब जो लाइंस हो गया, जो मूवमेंट है, जो नीचे है, जो कलर है, जो टेक्सचर है, दैट एवरीथिंग इज शोइंग यू कि दैट इज लीडिंग योर आईज। भले ये पिक्चर स्टैटिक है, बट इट्स मेकिंग यू टू सी कि देयर इज अ कलर एंड देयर आर पीपल दैट आर कमिंग टुवर्ड्स यू और पॉइंटिंग गन साइडवेज, राइट? दैट्स हाउ मूवमेंट हेल्प्स। अगर ये स्टैटिक पिक्चर होती, कुछ नहीं होता, देयर आर जस्ट लाइक कलर्स, you won't have felt anything strongly for that image. Next, हाँ, मतलब इसमें बताओ how is movement being used, मतलब कैसे यूज हो रहा है? काफी अच्छा एग्जांपल है। The smoke behind. It shows like an explosion behind it. Like, हाँ, तो मूवमेंट कैसे यूज कर रहा है? मतलब इट्स अ एक्सप्लोजन क्रिएट हो रहा है, बट उससे क्या मतलब? पूरे पूरे पिक्चर को ऑब्जर्व करो, व्हाट इट्स शोइंग। एडिडास का सेंटर पे पोस्टर जा रहा है फोकस। उसका बॉल जंप बास्केट एक में तरह से जाने वाली बूस्ट है। हो गया शायद। like तो when you हाँ बताओ। like it is implying when you wear Adidas, like you have explosive power and can do amazing things, I guess. हाँ, इसलिए वो भी है, बट एज यू कैन सी कि मतलब वो एक्सप्लोजन भी है, और जो बास्केटबॉल प्लेयर है उसका मूवमेंट ऐसे है, और चीजें भी उसी साइड आर्च कर रही है उसकी तरफ, एंड इट्स डायरेक्टिंग यू टू द पॉइंट जहाँ पे एडिडास का लोगो है एंड वेयर इट्स रिटन गेट एक्सप्लोसिव, राइट? जो पूरा पिक्चर का मूवमेंट है, ऐसे एडिडास के मैक्सिमम जो तुम बैनर्स देखोगे, जितने भी पोस्टर्स देखोगे, they use this type of explosion, या नाइकी के जितने भी देखोगे, so they use leading lines, they use motion to shift your gaze from to the most important things they want to highlight in the poster, ठीक है? लास्ट सेकंड सिंबल इज यूनिटी। यूनिटी इज डिजाइन में काफी ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, एंड मानवी, एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। लाइक देयर इज आल्सो वन एग्जांपल ऑफ अ मोमेंट। लाइक किसी ने कभी Amazon के लोगों को ध्यान से देखा है? देखा है। हाँ, Yes. तो Amazon के लोगों में भी मोमेंट यूज होता है, तो थोड़ा कोई एक्सप्लेन करके बताएगा कि कैसे? Like there's an arrow that's going from A to Z, so it implies it delivers everything. एग्जैक्टली। सो वो भी एक काफी अच्छा एग्जांपल है इन लोगोस की हाउ यू यूज मोमेंटम अ मोमेंट इन द मोमेंट प्रिंसिपल इन द लोगोस। सो या, कैरी ऑन। ओके,
थोड़ा सा और देख लेते हैं, बोर मत होना। यूनिटी देखो, डिजाइन में काफी ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, इमेज हो गया, एंड काफी ज्यादा सेट्स ऑफ इमेज हो गए, ठीक है, एवटार हो गए, बहुत सारी चीजें। तो अब तुम उन सारे एलिमेंट्स को कैसे यूज करोगे जिससे तुम्हें लगे कि वो डिजाइन एक ही पीस है एंड दे आर वर्किंग वेल टुगेदर। फ्यूचर में भी अगर तुम्हें उस प्रोडक्ट को कोई एक्सटेंशन लाना हो या कुछ भी बनाना हो, डिजाइन को साइड को एक्सपैंड करना हो, तो इट शुड फील लाइक इट्स अ वन सिंगल एंटिटी एंड दे आर वर्किंग टुगेदर। तो उसके लिए जो उसमें विजुअल एलिमेंट्स होते हैं, दे शुड हैव अ क्लियर रिलेशनशिप की हाउ दे आर डिजाइन, राइट। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो प्रिंगल्स तो मोस्टली सभी ने खाए होंगे। तो जनरली तुम प्रिंगल का कोई भी बॉक्स देख लो, दे आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट अगर तुम उसका नाम भी छुपा दो, यू विल गेट टू नो कि वो प्रिंगल्स का बॉक्स है। तो यू कैन नेवर कंफ्यूज प्रिंगल्स विद लेज या फिर टेढ़े मेढ़े अंकल चिप्स, कभी भी कंफ्यूज नहीं कर सकते हो। सो दैट्स हाउ ब्रांड मेक देयर ओन प्रोडक्ट्स कि they feel united, they feel like that is one product portfolio that they are having, right? तो ये तो physical product में हो गया, and this one is in mostly interior designing. So you, as you can see, all the colors mostly used here are white. So मतलब these colors are used so judiciously कि वो तुम्हें एक सिंगल बेडरूम मास्टरपीस लग रहा है। अब मैं बेड ब्राउन कलर का रख दूं, सोफा ब्लू कलर का रख दूं, बाकी सब वाइट कर दूं, तो दे विल फील आउट ऑफ प्लेस कि या तो वो एक जगह से नहीं लिया है या तो वो सिंगल बेडरूम नहीं है, ठीक है। दैट वोंट प्लीज टू एनीवन आइज, राइट। तो घर में भी कभी भी देखते होगे, पीपल ट्राई टू मैच कर्टन विद बेडशीट का कलर या फिर रूम का सराउंडिंग। सो दैट इज टू जनरेट अ या सेंस ऑफ डेली लाइफ यूनिटी। में या डेली लाइफ में तुम भी यूज करते होगे, लाइक व्हेन यू गोइंग आउट, तो तुम भी मैच करके ही जाते होगे, लाइक शूज विद योर टी शर्ट विद योर शर्ट एंड समथिंग। तो वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है यूनिटी का ही। So that's how unity comes into play. Last is alignment. Alignment is कि हम कैसे place करते हैं visual elements को, how do we line them up in a composition. मतलब हम क्या चाहते हैं कि एक ordered सी appearance दिखे हमको, जिससे हम easily पढ़ पाए, easily चीजें navigate कर पाए, rather than being confused, कभी इधर पढ़ रहे हैं कभी उधर पढ़ रहे हैं। तो तो काफी खराब एक्सपीरियंस होता है, राइट। अब अगर ये अलाइनमेंट यहाँ होता, अब मैं सब यहाँ पे उल्टा उल्टा इधर लिख देता, लेफ्ट अलाइन कर देता, तो इट वुड बी हार्ड फॉर यू कि तुम उसको रीड कर पाओ, बिकॉज यू आर रीडिंग इट कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट हाफ एन आवर और मच मोर देन दैट इसी वे में। अब मैं अचानक से अलाइनमेंट शिफ्ट कर दूंगा तो तुम्हारे ब्रेन को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, राइट। तो दैट्स हाउ अलाइनमेंट इज ऑल्सो वन मेजर थिंग जो मैंने काफी देखा है, लोग गलत कर देते हैं मिस अलाइनिंग। कर देते हैं। हाँ, काफी मिस कर देते हैं when they are doing something, either poster, either making slides, anything. तो alignment is one thing that you should always take care of. मतलब अगर सब कुछ भी सही कर दोगे, alignment खराब होगा तो ओवरऑल सब खराब लगने लगेगा। मतलब क्योंकि जो तुम मेन करवाना चाह रहे हो वो इंसान सही से पढ़ ही नहीं रहा या फिर सही से देख ही नहीं पा रहा है इन द सेम मैनर, तो इट्स वेस्ट। देन हाँ, सबसे अच्छा अलाइनमेंट इज मोस्टली यूज्ड इन बुक्स। बुक्स में देखते हो जनरली हर चीज, हर पेज पे जहाँ भी देखोगे, इट्स ऑलवेज लेफ्ट अलाइन। हमारी आईज भी उसी फैशन में बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट, राइट। मोस्ट टू कॉमन पैटर्न्स होता है लेफ्ट टू राइट या फिर जेड पैटर्न में पढ़ना, ठीक है। ऐसे जा रहे हो फिर ऐसे जा रहे हो फिर वापस ऐसे आ रहे हो, ठीक है। So that's how we mostly read. Agar if you can understand how human body works, how human mind works, you will be able to design very very good designs that can leverage कि हम कैसे सोचते हैं, हम कैसे करते हैं, how we do things. तो अगर उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करोगे तो your design will be loved by the users rather than कि अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिजाइन करना या जो खुद अच्छा लग रहा हो, राइट। देन हाँ, so मैम ये लास्ट। हेलो मैम, एक डाउट था मुझे कि डिजाइन को साथ में करते करते क्या मुझे साइकोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी क्या? इफ यू ये क्वेश्चन क्योंकि हम बेसिकली एंड हम में कवर कर लेते हैं। हर्षित, हाँ हाँ ये ठीक, क्वेश्चन लाइक ओके दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर डेक,
ये कवर करने के बाद हम Q&A पे ही जाएंगे, राइट? ओके ओके, थैंक यू। ऑलराइट हर्षित। तो ये लास्ट एग्जांपल है। ये यू कैन सी कि मतलब टेक्स्ट जो ऊपर हेडिंग थी वो लेफ्ट अलाइन है, उसके बाद जो नीचे टेक्स्ट है वो बीच में सेंटर अलाइन हो रखा है। तो यू कैन सी कि काफी ज्यादा वास्ट डिफरेंस है अलाइनमेंट में, एंड तुम्हें पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी एज कम्पेयर टू इफ यू सी राइट साइड की इमेज, एवरीथिंग इज लेफ्ट अलाइन, यू कैन जस्ट रीड इट एवरीथिंग. It will take very much less time to you and will cause much less frustration while reading the text. So yeah, that's how an alignment can affect your designs, right? So हाँ, mostly यही था, 10 principle और 6 elements. आपको questions हैं तो you can ask. हर्षित का क्वेश्चन आप कर रहे हो क्या विवेक भी आंसर? तुम ही करो मैम। हाँ, मतलब मैं तो साइकोलॉजी पढ़ता ही हूँ, you are but good ठीक in है। psychology, that's why psychology के क्वेश्चन तुम ही लो प्लीज। तो हर्षित, can you repeat your question please? मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब आप बेसिकली क्लाइंट पे फोकस कर रहे हैं, तो हम आप कह रहे हैं कि मतलब क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम उन्हीं की साइकोलॉजी पे हम लोग फोकस करेंगे, तो ह्यूमन साइकोलॉजी पढूं क्या मैं डिजाइन के साथ साथ पैरेलली? देखो, इफ यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू मतलब प्रोडक्ट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन में मतलब पढ़ सकते हो। साइकोलॉजी इज वेरी मतलब हर जगह रोल आता है, तुम कोई भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, साइकोलॉजी हैज अ वेरी वेरी बिग रोल इन एवरी फील्ड यू सी, राइट? तो मेरा यस ऐसा मैम, है यस। कि साइकोलॉजी की कोई डिग्री मतलब ऐसे जगह तुम सोच रहे हो कि कोर्स करना है, डिग्री करनी है, तो वो रेलेवेंट नहीं है, ठीक है? तो जो नहीं नहीं डिजाइन नहीं, के, वो उस पे नहीं है। हाँ, तो जो डिजाइन के लिए बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, दैट यू स्टिल हैव टू लर्न। मतलब व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, तुम्हें सोचना पड़ेगा हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। ह्यूमन माइंड को कितना कितना ऑप्शन दोगे तो इट विल फंक्शन वेल। अगर 7 से ज्यादा ऑप्शन दोगे तो वो भूल जाएगा कि उसको क्या करना है, राइट? तो कुछ कुछ चीजें होती हैं जो दैट हेल्प यू टू मेक बेटर डिजाइन, राइट? तो that few principle you always have to learn while learning about user design. तो उसके लिए it's not very vast, but अगर तुम वो छोटी छोटी चीजें समझ सको, right, तो it would be very तो helpful in making good and pleasant usable designs. Also ओके। in तो addition मैम जनरली मैं ठीक है, इसमें मैं ओके थोड़ा सर, ऐड करना प्लीज चाहूंगा कंटिन्यू। बेसिकली। हाँ हाँ, तो बेसिकली व्हेन यू सेड कि क्लाइंट को प्लीज करने के लिए, सो देयर इज अ टू कॉन्सेप्ट कि तुम किसके लिए बना रहे हो, तुम्हें उनको प्लीज करके उनकी साइकोलॉजी जानना है, ना कि जो तुम्हें बनाने को दे रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है? यहाँ पे दो यूजर है, एक तुम्हें कह रहा है बनाने के लिए, और एक ये है कि तुम किसके लिए बना रहे हो। अब जैसे मैं हूं, मैं बोलता हूँ कि तुम एक ऐप बनाओ एक बच्चे के लिए, तो तुम्हें बच्चे की तरीके से सोचना पड़ेगा कि बच्चे की क्या साइकोलॉजी है, ना कि मेरी साइकोलॉजी कि तुम्हें मुझे प्लीज करना है, राइट? ओके, ठीक है, कैरी ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तुम्हारा क्वेश्चन था आई गेस सर मेरा एनी अदर सर क्वेश्चन? वो क्लियर आउट हो गया। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चंस? Sorry, I didn't get you. Golden ratio. मेरे आवाज क्यों नहीं आ रही? I think he's asking what is golden ratio. गूगल पे दिखा दो एक बार कि गोल्डन रेशियो बेसिकली एक स्पेसिफिक देख का वीडियो पॉज हो गया क्या? हाँ, सो बेसिकली गोल्डन रेशियो एक बेसिकली रेशियो होता है और एक शेप होती है। तो अगर तुम उसको यूज करके कोई भी पिक्चर लेते हो या कोई भी इलस्ट्रेशन या कोई भी आर्ट बनाते हो, तो वो कंसीडर होती है परफेक्ट आर्ट वर्क या परफेक्ट फोटो के। तो Mani, can you show some example of the golden ratio photo on the Google, please? एक सेकेंड, मैं
शेयर करता हूँ एक सेकंड। गोल्डन पहले रेशियो गोल्डन रेशियो की एक हाँ गोल्डन रेशियो की एक इमेज दिखा देना पहले। दिखाता हूँ। ओके ठीक है, गोल्डन रेशियो तो ये रहा, ओपन कर इमेजेस में जाकर देखते हैं। हाँ तो बेसिकली तुम देख पा रहे हो कि ये काफी आर्क से बन के मिलके बनता है, राइट? फर्स्ट इमेज खोल लो। ये वाली हाँ सो तुम देख रहे होगे कि ये ना 4 से 5 लाइक इंफिनिटीज ऑफ आर्क से मिलके बनता है, जो कि छोटी होती रहती है। तो तुम देख रहे होगे कि बीच में एक सेंटर पॉइंट आ रहा है, राइट? तो अगर वहां पे तुम इमेज रख लाइक अपना मेन प्रोडक्ट रख के या मेन जो भी तुम जिस पे फोकस डालना चाहते हो वो अगर उस पॉइंट पे रहेगा एंड देन यू क्लिक योर फोटो, तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस देगी, काफी एक यूनिक फोटो बन के आएगी। तो एक बार इमेजेस सर्च करना लाइक गोल्डन रेशियो इमेजेस, तो उससे बेटर वो होगा इनका क्लियरिटी। कौन सी खोल फर्स्ट लाइन की कोई सी भी खोल लो। तो जैसे ये वाली इमेज है, तो तुम देख रहे हो कि जो मेन हमारा फोकस है, ये जो डायरेक्शन जा रही है हमारी, वो गोल्डन रेशियो के उस सेंटर की तरफ जा रही है। ऐसे ही करके मतलब इट्स कन्वर्जिंग की यहाँ पे। हाँ तो ये गोल्डन रेशियो ऐसे ही वर्क करता है कि तुम कुछ भी फोकस, ऐसे ही हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग सॉरी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी इसका काफी यूज करते हैं, जिससे कि काफी प्लीजिंग जो हमारा प्रोडक्ट है वो काफी अच्छी तरीके से विजिबल हो और उस पे फोकस जाए बेसिकली। तो और यही प्रिंसिपल ना लाइक अभी रिसेंटली अवतार 2 रिलीज हुई है, तो ये प्रिंसिपल तुम काफी ऑब्जर्व करोगे उसमें, उस मूवी में काफी यूज हुआ है। जितनी भी अच्छी फोटोग्राफी होगी सब में यू विल हाँ। सी दिस प्रिंसिपल। जब डिजाइन भी करते हो ना कि इंटरफेस डिजाइन, तो उसमें जो स्पेसिंग लेते हैं ना वो भी अप्रोक्सीमेटली गोल्डन रेशियो के टर्म्स में ही ली जाती है। मतलब गोल्डन रेशियो पॉइंट्स में होता है तो एग्जैक्टली वो नहीं लेते, बट हम 8 और 4 का रेशियो लेते हैं। राइट सो आई होप इट विल क्लियर योर डाउट जो भी था। एनी अदर क्वेश्चन? इन जनरल क्वेश्चन भी पूछ सकते हो भाई, कोई हाँ, मिथ हो डिजाइन करिए। डिजाइन से रिलेटेड कोई मिथ हो वो भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। Like for designing, you should be artistic. मैं नहीं हूँ बिल्कुल आर्टिस्टिक। Not this is not true actually. Like you have basic knowledge of like creativity, basic creativity हो तुम्हारे अंदर कि हाँ तुम ये जज कर पा रहे हो कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, that's is enough. But पूरा like full fledged अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम स्केचिंग करो पोर्ट्रेट बनाओ तो ऐसा कुछ रिक्वायर नहीं होता, राइट? बिकॉज ना मैं वो कर सकता ना मानवी वो करती है, और वो हमारा रोल भी नहीं है, वो हमारी जॉब भी नहीं है, राइट? तो अगर हमारा वो रोल होता तो हम एज अ आर्टिस्ट होते, पेंटर्स होते या इलस्ट्रेटर होते, बट वी आर डिजाइनर्स, वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। मतलब ये तो हटा देना, मैं बिल्कुल क्रिएटिव नहीं हूँ। ऑल द विग भैया इज मच मोर क्रिएटिव देन मी। मैं बिल्कुल क्रिएटिव नहीं हूँ, बट मैं फिर भी डिजाइन कर रहा हूँ, तो इतना इतना मेजर रोल प्ले नहीं करती क्रिएटिविटी। हाँ मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले में तो नहीं करती, बट व्हेन यू आर गोइंग टू मेक इंटरफेसेस, यूजर इंटरफेसेस में जो थोड़ी विजुअल डिजाइन होती है, तो यू हैव टू बी बिट क्रिएटिव। मतलब थोड़ा बहुत, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा क्रिएटिव बना देना है कि वो यूजर को ही नहीं समझ आए यूज कैसे करना है आप, बट हाँ थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी तो चलती है। कोई और क्वेश्चन? जितना ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे बेटर रहेगा गाइस। देखो अब हम चिल मोड में हैं, फन के मूड में हैं, में कुछ भी पूछना है पूछो, चलेगा, ठीक है? बस पार्टी मत मांगना। पूछ लो। अगर आप कभी कोई पोस्टर बनाते हो तो
आप ऐसे करते हो कि एक प्रिंसिपल आप सोच लेते हो और उस पर पूरा वर्क करते हो, ठीक है? एक डिजाइन सोच लेते हो कि मतलब आपको बेसिक आइडिया होता है और आप प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करते हो उसमें। तो मतलब as such बेसिकली ये ना तो जो मैं अपना बताता हूँ कि मेरा एक प्रोसेस रहता है कोई भी डिजाइन बनाने का। तो मेरा ये मैं पहले ये चीजें देखता हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन द पोस्टर। तो मेरे केस में वो ज्यादातर स्पीकर की डिटेल्स एंड डेट एंड टाइम और टॉपिक होती है। देन मैं उनमें प्रायोरिटाइज करता हूँ कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा टू अट्रैक्ट माई ऑडियंस। तो अब जैसे कल अंश मेहरा आया था, तो उस केस में हमारा अंश मेहरा इज द मेन अट्रैक्टिव थिंग, तो मैं उस चीज को ज्यादा इंफेसिस दूंगा रादर देन माई हाइडिंग और वेन्यू। देन वेन्यू इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट केस, कि भाई बंदा आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है ये भी तो पता हो। कुछ भी बोले वो बंदा आ रहा है, हमें जनता चाहिए, दैट्स ऑल। देन लास्टली इट्स अ हेडिंग, एंड देन जो बची हुई बाकी चीजें वो हम साइड में डाल देंगे, लाइक जो कि बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही होगी, बैलेंस क्रिएट करेगी एंड रिक्वायर्ड होगी, दैट्स ऑल। तो ये मेरा प्रोसेस रहता है कि मैं पहले डिफाइन करता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, देन हायरार्की। मतलब तुम्हारे पास एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएगा ना, पहले यू जस्ट हैव also yeah, carry on Manvi sir. हाँ, मैं बस बोल रहा हूँ एक बार सारी चीजें एक बार रख लेना कि तुम्हें एक इमेज चाहिए, एक हेडिंग चाहिए, थोड़ा डिस्क्रिप्शन चाहिए, स्पीकर का नाम, ये सारी चीजें हैं। नाउ यू हैव टू थिंक कि इनको पोजीशन कैसे करना है। तुम सोचो कि तुम पोस्टर देख रहे हो और तुम वो शो क्यों देखने आओगे, मतलब तुम वो पोस्टर ही क्यों पढ़ोगे। तो थिंक लाइक दैट कि मुझे क्या क्या इंटरेस्ट करेगा, मोस्टली ऑडियंस को क्या इंटरेस्ट करेगा, कि सेशन यूएक्स पे है कि अंश मेहरा आ रहा है, क्या इंटरेस्ट करेगा। थिंक लाइक ऑन दैट परस्पेक्टिव, एंड जब तुम सोचते हो देन यू स्टार्ट डिजाइनिंग कि इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इनको कम इंपॉर्टेंस देनी है। एंड जब एक बार यू स्टार्ट डिजाइनिंग ना, तो सबकॉन्शियसली वो जो जितने भी प्रिंसिपल्स हमने देखे, वो एलिमेंट्स, वो तुम्हें याद नहीं रखने पड़ते। यू ऑलवेज हैव देम इन योर माइंड, और जब तुम बना रहे होगे तो ऑटोमेटिकली सब अलाइन दिखेगा तुमको। कुछ टाइम के बाद इट ऑटोमेटिकली फॉल्स इनटू प्लेस। शुरुआत में यू हैव टू बी अ बिट मोर, मतलब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि इज इट फाइन, कि कहीं पे ऑफ बैलेंस तो नहीं जा रहा है मेरा, कहीं पे मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो वो प्रैक्टिस से आता जाएगा। द मोर डिजाइन्स यू सी, द मोर डिजाइन्स यू क्रिएट, यू विल गेट बेटर एट दैट। Also don't limit yourselves only for posters, कि सिर्फ posters ही मत बनाओ, थोड़ा क्रिएटिव लाइक डिजिटल आर्ट भी करो, थोड़ा यूआई भी करो, थोड़ा वेब डिजाइन भी करो, ठीक है? उससे तुम्हारी मतलब एक तो जो हमारी फील्ड में चल रहा है वो भी तुम्हें पता लगता रहेगा, तो तुम्हारी क्रिएटिविटी भी थोड़ी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है? तो खुद को लिमिट मत करना है पोस्टर्स के लिए सिर्फ। नेक्स्ट Sorry to interrupt the Q&A session, but before that, can we have a group photograph? And for that, I would request the participants to turn on their videos. Everyone, please turn on your videos so that we. Great. I think we are good to go. Smile. स्माइल तो है ही। से डिजाइन Design. Great. Also, I'm putting a link to the feedback form in the chat section. So everyone is requested to please give a feedback of the session. And I know that you guys loved the form, but still loved the event, but still feedback is important so that we can improvise. Yes. और जिन्होंने भी फोटो लिया है, यू कैन टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, हम भी है इंस्टाग्राम पे। I think we can continue with the Q&A now. Let's continue with the next question please. In general क्वेश्चन भी पूछ सकते हो guys, ऐसा कुछ नहीं है।
भैया जैसे हमने अभी 10 वो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन डिस्कस किए, उससे पहले एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन थे 5, मतलब ये एक साथ बहुत ज्यादा था। और हम मतलब हम ये सब या कहाँ एक्चुअली वो बना। हाँ जी, मतलब ये या हमें एग्जैक्टली सो हमारा भी हमें व्हेन वी आर या पहले ही तुम कैरी ऑन करो पहले अपना क्वेश्चन पूरा करो देन वी आर ये तो मतलब हम इनमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाए। अभी तो हम एक आधी भी डाल दें वो भी हमारे लिए अचीवमेंट वाली फील थी कि मतलब ओके पोस्टर बना रहा ठीक हूँ, है। ये आ गया, वाओ। तो देखो मैं अपने टाइम में क्या करता था, सो मैं अपना फीडबैक मतलब वही बताऊंगा कि जो मैंने फील किया है, मानवी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी, मैं अपना एक्सपीरियंस। तो बेसिकली मैं क्या करता था, मुझे क्यूरियोसिटी रहती थी कि यार आज तो मुझे तारीफ चाहिए, मेरे को चाहिए पार्टी, ठीक है। तो मैं रोज की रोज कुछ ना कुछ बनाता रहता था, फीडबैक लेता था, कभी कभी गालियां भी सुनी है कि क्या बना दिया, क्या बनाया तुमने। तो ऐसे फीडबैक जब तुम लोगे ना तो तुम्हें पता लगेगा कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या लोगों को पसंद आ रहा है, क्या लोगों को नहीं पसंद आ रहा है। इवेंचुअली यू इम्प्रूव योर डिजाइन, ठीक है। तो टेक फीडबैक, और फीडबैक को पॉजिटिवली लो, ऐसा नेगेटिवली मत लो। वो देखो सीधी सी बात है, उनको बुरा लग रहा है तो मे बी सम केसेस में उनकी भी क्रिएटिविटी बुरी हो सकती है, ठीक है। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो फीडबैक इज मोर इम्पोर्टेंट देन ए प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना इम्प्रूव होगा तुम्हारा डिजाइन। और तीसरा जो लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं फील करता हूँ कि शोकेस योर वर्क समवेयर, मे बी इन ऑन इंस्टाग्राम, Behance, लिंक्डइन, कहीं पे भी, बट पोस्ट करो। तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा डिजाइन कैसा वर्क कर रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। इवेंचुअली वो तुम्हें मोटिवेशन भी देगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये तीनों इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें करोगे तो इवेंचुअली तुम्हारा डिजाइन काफी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। ओके। मैं अपना बताऊं तो वैसे तो मोस्टली सारी चीजें बोल दी विवेक भैया ने। एक तो फीडबैक सबसे काफी इम्पोर्टेंट होता है। एक चीज थी कि मतलब आई ऑलवेज ट्राई टू गो थ्रू, मैं मेरा मोस्टली प्रोडक्ट डिजाइन की तरफ ज्यादा अलाइनमेंट रहा है rather than पोस्टर डिजाइन। तो आई वेंट टू एवरी वेबसाइट जो मुझे अच्छी लग रही है, खराब लग रही है, या कोई भी ऐप जो मैं यूज कर रहा हूँ, नाउ माय माइंड फंक्शंस लाइक कि इसने ये गलत किया है, इसको ऐसे बेटर करते हैं। तो शुरुआत में जो भी मैंने पढ़ा था, आई ट्राई टू थिंक लाइक ये इसको क्रिटिक कैसे करते हैं, मतलब इसमें अच्छा क्या है, मतलब सब खराब खराब ही नहीं दिखना है, इसमें अच्छा क्या है, इसमें खराब क्या है। तो व्हेन यू नोटिस दीज थिंग्स, हर जगह जाके यू सी कि अच्छा एप्पल ऐसे कर रहा है बट सैमसंग ऐसे कर रहा है, मतलब है तो बेच तो सब फोन ही रहे हैं, बट क्यों अलग क्यों है। मतलब जब वो सारी चीजें तुम सोचते हो, हाउ हाउ डू दे पोर्ट्रे योर ब्रांड टू यू, कैसे वो अपनी वेबसाइट को यूज करते हैं। कोई भी वेबसाइट ले सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी फोन में व्हाट्सएप ले सकते हो, व्हाट्सएप में डिलीट फॉर एवरीवन है, बट फिर डिलीट फॉर एवरीवन दोनों को दिखाता है। कोई सेंस है उस डिलीट फॉर एवरीवन का? नहीं, मतलब तो दिया ही क्यों था, बस मैसेज डिलीट हो रहा है बस। तो मतलब जब तुम ऐसे करके चीजें यूज करते हो, काफी सारा फंक्शनैलिटीज एक्सप्लोर करते हो, लोगों से बात करते हो, हर इंसान तुम्हें अलग फीडबैक देगा उस चीज का, ठीक है। तो उससे तुम्हारा डिजाइन सेंस डेवलप होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम पोस्टर डिजाइन के लिए कह लो, डिजिटल आर्ट के लिए कह लो, फाइंड अ ग्रुप ऑफ पीपल। आई गॉट, मतलब कॉलेज में तो लिटरली नहीं मिले थे मुझे पीपल, विवेक भैया थे तो वो तो मेरे मेंटोर के समान थे, मैं उन्हीं से सीखता था। बाकी जो सेम ग्रुप में पीपल, काफी ज्यादा डिस्कॉर्ड पे और स्लैक पे काफी ज्यादा सर्वर्स हैं डिजाइनर्स के लिए, भले फिर वो डिजिटल डिजाइन हो, यूएक्स डिजाइन हो, प्रोडक्ट डिजाइन हो, कोई भी डिजाइन। तो आई लिटरली हैव 4 to 5 क्लोज फ्रेंड्स जिनके साथ मैं कहीं भी जा सकता हूँ, डिजाइन के कंपटीशन में पार्ट ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो कम्युनिटी तुम बना सकते हो। अब तो अपने कॉलेज में काफी लोग सीख रहे हैं डिजाइन, कॉलेज में ही ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे उतना ज्यादा पर्सपेक्टिव बढ़ेगा, उतना ज्यादा तुम्हारा थॉट प्रोसेस और ओपन होता जाएगा, यू विल लर्न मोर। एंड हाँ, कुछ भी बनाओ, पोस्ट इट ऑनलाइन, फीडबैक लो लोगों से, ठीक है। डू जस्ट लाइक ऐसे ही 30 day चैलेंज, 7 day चैलेंज, किसी से भी शुरू करो, पोस्ट
एनीथिंग ऑन लिंक्डइन का अलग अकाउंट बना लो, ट्विटर का अलग अकाउंट बना लो जिसपे से वही पोस्ट करना है, या तुम्हें लगता है तुम इंस्टाग्राम पे अपलोड करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे डाल लो एंड प्रमोट इट कि लोग देखें एंड दे अप्रोच यू। तो उससे तुम टाइम पे बेटर इंप्रूव करोगे। तुम्हारे पास एक तो सोशल प्रेशर होगा, इंसान की तरह सोचो, तुम डाल रहे हो कोई चीज जो बहुत सारे लोग देखेंगे, अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, खराब चीज तो नहीं डालोगे तुम, कुछ भी कर लो। तो एक वो प्रेशर हो गया, यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एवरी डे, या मतलब ऑल्टरनेट डे पे डाल लो कभी भी, ठीक। फिर लोग फीडबैक देते हैं तुमको, तो फीडबैक मिलेगा, यू विल इम्प्रूव मोर। तीसरा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अगर तुम अभी से अपनी प्रोफाइल बिल्ड करोगे तो लोग तुम्हारा काम देखेंगे, देन दे विल अप्रोच यू, ठीक है। तो जो लोग कहते हैं ऑफ कैंपस डिफिकल्ट है, दैट्स नॉट अ थिंग इफ यू हैव अ राइट पर्सनल ब्रांड अवेलेबल, या फिर राइट सेट ऑफ पीपल या नेटवर्क अवेलेबल आउटसाइड फॉर यू। तो काफी सारी चीजें हैं जिनसे डिजाइन काफी बेटर होती जाती है विद टाइम। और हाँ, काफी, और क्या और बोलूं, एक हाँ एक हाँ और सेइंग है, लाइक काफी फेमस है इन डिजाइन कम्युनिटी, कि गुड डिजाइनर्स डिजाइन गुड बट बेस्ट डिजाइनर स्टील गुड डिजाइन्स, राइट? तो ये काफी ट्रू है, और ये तुम काफी ऑब्जर्व भी करोगे कि तुम एग्जांपल ले सकते हो एप्पल का, सैमसंग का, रेडमी का, या किसी भी लैपटॉप की कंपनीज का। तो इफ व्हेन यू गो एंड सी कि तुम्हें कोई लैपटॉप परचेज करना है, तो तुम्हें वहां पे ऑप्शन देते हैं कि भाई तुम्हें कितनी जीबी रैम चाहिए, कितनी एसएसडी चाहिए, कौन सा जीपीयू चाहिए। तो वो सिमिलर डिजाइन है सबका, राइट? तो यही यही प्रूव करता है कि दिस सेइंग इज ट्रू, ठीक है? उसका बट स्टार्टिंग हाँ में मत एक और करना, रीजन भी है, स्टार्टिंग में खुद की क्रिएटिविटी दिखाना। उसका जनरली एक और भी रीजन होता है। अब तुम हर साइट पे जाओगे, हर साइट पे अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, तो तुम कंफ्यूज जाओगे करना क्या है, उतना ज्यादा टाइम लगेगा उन चीजों को करने में। इसको जैकॉब्स राइट, इफेक्ट कहते हैं आई गेस, हाँ। तो हाँ, मतलब एक जैकब एक सेट सेंस में चीजें डिजाइन होती हैं, वो जब तुम डिजाइन करते हो ना, तो वो स्टैंडर्ड तुम्हें सीखना पड़ता है। अब मैं एप्पल की वेबसाइट पे जाऊंगा, सेम तरीके से ही मेरे को चूज करनी है, कहीं भी जाऊंगा सेम तरीके से चूज करना है, पेमेंट करना है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सब में सेम तरीके से होगा, पे करूंगा, यूपीआई में कोड डालूंगा, देन पेमेंट स्क्रीन आएगी। स्क्रीन अलग दिख रही है, सब अलग दिख रहा है, प्रोसेस एक है, ठीक है। तो वो चीज देखनी पड़ती है, वो स्टैंडर्ड्स होते हैं। एंड हाँ, तो जैसे ऑल्सो जैसे तुम डिजाइन देखोगे, यू कैन स्टील एंड मतलब काफी अच्छे से इम्प्रूव। बिल्ड कर सकते हो। सो ऑल्सो लाइक मानवी ने पीयर्स का जो बोला, तो पीयर ग्रुप मिलना इज मोर इम्पोर्टेंट, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर तुम जितनी जल्दी पीयर ढूंढ लोगे उतना बेटर रहेगा। मतलब तुम उनके आइडियाज खुद के आइडियाज से मैच कर पाओगे, तुम्हें पता लगेगा कि वो कैसे सीख रहा है। तो किसी का क्वेश्चन था कि साइकोलॉजी सीखनी जरूरी है या नहीं, तो वो वहां से तुम सीख पाओगे कि तुम्हारे पीयर की क्या साइकोलॉजी है, ठीक है? तो पीयर बनाओ, और मेंटर के लिए तो मानवी मैम है ही अभी कैंपस में 6 महीने के लिए, तो इनको पकड़ लेना, ठीक है? मेरे को भी बहुत कॉलेज सही में पीयर रहेगा। ग्रुप चाहिए, मुझे भी दे दो पीयर। ऐसा नहीं है, अब हो चुका है तुम्हारा, ठीक है? तो पीयर ग्रुप बनाओ, थोड़ा रोज कुछ डिस्कशन करो, रोज किसी प्रोडक्ट को उठा के उसकी बेइज्जती करो कि क्या बुरा है इसमें, हम क्या कर सकते थे, ये होना चाहिए था, तुम ही राइट? सीनियर डिजाइनर हो, बस तुम बताओ, तुम जो कहोगे वही होगा, तुम ही हो ऐसे बेस्ट सोचो। डिजाइनर, वही होगा। ऐसे सोच के करना, तो काफी काफी नॉलेज, काफी सीख पाओगे, काफी नई चीजें आएगी दिमाग में। बेसिकली तुम्हारे आइडियाज फॉर्मेशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन भी कवर कर लेते हैं अगर किसी का है तो, नहीं तो किसी ने हैंड रेज लेट्स गो। किया था बहुत देर से, वो काफी देर से था वो काफी देर अंकित से था का, एक्चुअली। हाँ। बाकी जो भी लोग एंड तक रुके हैं उनके लिए थैंक्स, हमारी बकवास सुनने के लिए। काफी ज्यादा कंटेंट था, बट जस्ट लाइक तीन ही थी हमारे पास वर्कशॉप, तो उसमें अगर डिजाइन कवर करनी है, काफी बड़ा है, वास्ट सब्जेक्ट है डिजाइन, तो इतना 3 वर्कशॉप में तो काफी लिटरली काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है। लाइक क्यूरियोसिटी के चलते ही मैंने अपने फाइनल ईयर में मैंने मैकेनिकल का सब्जेक्ट लिया था, जो कि कोई भी रिकमेंड नहीं करता, बट मेरे फाइनल ईयर में फाइनल सेम में मैकेनिकल का सब्जेक्ट था प्रोडक्ट डिजाइन, बिकॉज मुझे उसमें डिजाइन में इंटरेस्ट था, तो मैंने इसलिए लिया था। तो ये तुम भी ले सकते हो। इस सेम नहीं है, नहीं दिखा मुझे। कोई नहीं,
सैडी कॉग्निटिव साइंस है, मैं वो लेने जा रहा हूँ फिर। Interesting. Thank you. बाकी हाउस योर कॉलेज लाइफ इन जनरल, अगर ज्ञान की बात करें अभी तो अभी तो फ्रेशीज थे छुट्टी भैया। चल रही है, फ्रेशीज की क्लास चल रही है, हमारी सेकेंड ईयर टीस और थर्ड ईयर टीस की हॉलीडेज चल रही है, सो वी आर एट होम। अरे एक चीज ओके बोलो, जाने से पहले ये बता दो कि सेकंड सेशन में क्या देखना है। मतलब एग्जैक्टली मैं सोच रहा हूँ फिग्मा वाली वर्कशॉप थोड़ी हैंड्स ऑन करूंगा,